I am MS Mehta, practicing since last around 30 years. So I'm TISA, CISA, CFE, and technology has been, kind of my passion. And fell in love with, I'll say, Excel. So somewhere in maybe 97, 98, started using Excel. So found it, very interesting. Initially, it was Lotus. So when I shifted to Excel, so it was, really great, doing it. So since then, I've been exploring various areas, and Excel, let me tell you, is an ocean. So I generally say Excel is more like a Victorinox, a Swiss Army knife. उससे कुछ भी कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, okay, and audit भी कर सकते हैं, right? So Excel is a great tool to work on, and if you look at day and day, Excel is improving. So other day I was in one of the webinars and somebody said, "Sir, अभी तो Power BI आ गया, कई सारे data analysis tools आ गए, so probably Excel अभी obsolete हो जाएगा." So I said, यार Excel भी evolve हो रहा है, जैसे हम evolve हो रहे हैं वैसे ही Excel भी evolve हो रहा है. So COVID में we are all taking advantage of technology and upgrading ourselves. So similarly, Excel also has to follow the same. So I believe I'll just start sharing my screen so that we could just make a start. So Ravish, is my screen visible to you? Is it? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Sir. Okay, that's great. That's great. So okay, I can just just give me one moment. Let me set the things up. Sure, sir. So okay, friends. As I said, Excel is a great audit tool, and it all started somewhere in 1970s. In 1970s, we had this first spreadsheet program come up, which was at that time called VisiCalc. And VisiCalc worked on Apple machines. And that was the first program, where somebody could make calculations, somebody could do a lot of things, using some kind of, a spreadsheet. So calculation apne aap ho jata tha. Is Hindi comfortable with you all? I mean, it's a mix of Hindi and English. Sir, absolutely fine, sir. So Okay, Hindi okay. तो हम लोग No, sure. So it'll be a mix of the two languages, right? Okay, तो वो एक प्रोग्राम आया which was called VisiCalc, and क्योंकि उससे पहले जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे या तो साइंटिफिक लैब्स में होता था या गेमर्स यूज किया करते थे, तो आम आदमी का बोले तो कंप्यूटर से कोई लिंक नहीं था. बट ये पहला प्रोग्राम था जिसके साथ कि आम आदमी, एक अकाउंटेंट, एक ऑडिटर, एक ब्रोकर, कुछ ना कुछ उस पर काम कर सकता था. एंड दिस प्रोग्राम बिकेम वेरी सक्सेसफुल. एंड उसमें भी ये $100 का आता था, अराउंड मे बी अराउंड 7,000. आज भी अगर देखें तो एक्सेल है, सारे टूल्स अप्रोक्सीमेटली उसी कॉस्ट के आसपास आ रहे हैं. सो इनफैक्ट अगर देखें, कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन, the cost of technology has come down. It's come down drastically. So it has come within the reach. And in fact, जो VisiCalc था ये Apple machines पे काम करता था. And they say कि जो Apple machine का सक्सेस है वो भी शायद इसी प्रोग्राम की वजह से था, क्योंकि उससे पहले गेमर्स या साइंटिफिक कम्युनिटी यूज करती थी. एंड ये एक प्रोग्राम आया जिससे आम आदमी का कनेक्शन बन गया. तो पीपल स्टार्टेड बाइंग एप्पल एंड ओके. नाउ फिर एक दूसरा प्रोग्राम शायद बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, लोटस 123. ओके, लोटस 123 बिकेम वेरी वेरी सक्सेसफुल. ओके, लोटस 123 के बाद जो आज का बोले अगर स्टैंडर्ड, तो इट इज समथिंग लाइक MS Excel. So MS Excel is a kind of a standard today. Okay, so somebody is raising a hand. Is there a question or no? So there's something I believe you put up in the chat or in the questions, because it won't be possible to me to continuously monitor the chat. So the way we'll go is after some time I'll just look at the chat if there's something. Sir, you don't worry. We'll take questions last. We'll question. We'll take the questions at the end. No issues as such. आपका उसके बाद, and we'll keep record अपना जितना भी chat में आएगा. We'll keep the questions in our record and we'll ask you, sir. Sure. So you will not be disturbed, sir.
so that's fine, you know, because of बीच में कुछ hands raised हो रहे थे, just wanted to know somebody to ask a question or something, so that was the reason. So not an issue. Okay, so as I said, you know, today Excel is a kind of a de facto standard today. Okay, everybody is using Excel. और एक जो राइज कर रहा है दैट इज गूगल शीट्स. तो गूगल शीट्स इज सिमिलर टू दिस, बट गूगल शीट का जो फायदा है दैट इज द कोलैबोरेटिव थिंग्स व्हिच आर देयर. सो कोलैबोरेशन पॉसिबल है, वो सब चीज़ें पॉसिबल है. So Google Sheet is another great program, you know, which is evolving, but you know, we are all used to Excel. So friends, as I said, you know, Excel is more like a Victorian ox, Swiss Army knife. उसे कुछ भी कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, उससे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं और उससे हम ऑडिट भी कर सकते हैं. सो व्हेन आई टॉक ऑफ ऑडिट, क्योंकि आज का जो टॉपिक है दैट इज मोर लाइक एक्सेल मोर एज एन ऑडिट टूल. सो इफ यू टॉक ऑफ एक्सेल एज एन ऑडिट टूल, देन प्रॉब्ली, यू नो, जब उसको एज ए टूल यूज करना है तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. फर्स्ट इज कि जब भी आपको ऑडिट करना है, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्टिव व्हिच इज देयर, एंड द टूल शुड बी एबल टू गिव यू डेटा टू हेल्प यू टेस्ट योर असर्शंस. ओके, जो भी आपके असर्शंस हैं उसको वो मदद करना चाहिए उसको फुलफिल करने के लिए. किसी भी अगर एक्सेल को हम ऑडिट टूल यूज करते हैं तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, अपने को कहीं ना कहीं से अपने को डेटा चाहिए. सो फर्स्ट थिंग इज विल बी टेकिंग द डेटा. फ्रेंड्स, ऑनेस्टली अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाए और उसको बोले गिव अस एन एक्सेस टू योर डेटाबेस, सो मोस्ट लाइकली इट विल रिफ्यूज, क्योंकि वी कुड, यू नो, इंटीग्रिटी इश्यूज हैं, उसका डेटा हम सारा अपना मतलब गड़बड़ कर सकते हैं. बट हम जब उसको बोलते हैं कि हमारे को रिपोर्ट दे दो, तो ही इज हैप्पी टू गिव अस द रिपोर्ट्स. ओके, सो रिपोर्ट हम उसको बोलते हैं एक्सेल में चाहिए, तो बहुत बार क्या होता है कि वो बोलता है सर एक्सेल में रिपोर्ट पॉसिबल नहीं है. तो बट एसके एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि बेस फॉर्मेट है. सो रिपोर्ट्स आपको टेक्स्ट फॉर्मेट या एसके फॉर्मेट में मिल सकती है. ओके, एंड आज की डेट में देखें तो यूजिंग पावर क्वेरी बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज है जहाँ से कि आप डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं. बट डेटा जब भी आपके पास आता है, कभी भी साफ सुथरा डेटा नहीं मिलता. सो किसी भी डेटा एनालिसिस में, किसी भी काम में जो मेजर एफर्ट रहता है अपना, दैट इज इन क्लीनिंग द डेटा, हैविंग इट इन सम काइंड ऑफ ए डेटाबेस जिसको कि हम एनालाइज कर पाए. ओके, सो मेजर इशू रहता है दैट इज हाउ टू क्लीन द डेटा, जिससे कि हम उसको कुछ उसमें से पैटर्न्स निकाल पाए, कुछ उसमें से काम कर पाए. सो मेजर एफर्ट इज अगेन इन क्लीनिंग द डेटा. And the last step is you analyze the data, okay, get your results, and then, you know, you could give some kind of reports also, could be used in your reports also. और जो भी आप assertions या initial objective आप लेके चले थे, you should be able to fulfill through Excel. So that would be our, you know, the way we'll take the whole thing during this session. So I'll just start with some kind of audit objectives. So ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या कर सकते हैं? सी, ऑडिट क्या होता है कि wherever we are expressing an opinion on some kind of assertion, तो जो भी assertion है, those assertions could be financials, those assertions could be system. ना assertions में important क्या होता है, अपने को टेस्ट करना है क्या वो चीज़ वाकई में है, does it exist, whatever the assertion says. And always, you know, there will be some kind of, you know, some kind of limits, you know, which could be there, some kind of cut-off points. Okay, लाइक सिर्फ इसी साल का डेटा चाहिए हमारे को, सिर्फ पिछले 3 महीने का एनालिसिस कर रहा है, तो कोई ना कोई कट ऑफ्स आल्सो वी गॉट टू सी फॉर आवर असर्शंस. क्योंकि असर्शंस बहुत बार क्या होती है, किसी टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है, लाइक फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर और फॉर दिस क्वार्टर और फॉर दिस मंथ, राइट. सो एक्सेल से हम कैसे उन चीज़ों को निकाल सकते हैं, वो कट ऑफ लिमिट्स कैसे देख सकते हैं. फिर हमारे को डेटा को किसी न किसी तरह से स्ट्रैटिफाई करके उसमें ट्रेंड्स देखते हैं. So, क्या होता है कि, you know, stratification करके you get a kind of a macro view, you get a kind of a 1 mile view of the data, and बहुत सारी चीजें जो आपको अंदर जाके नहीं समझ में आती, पर जब आप एक 1 mile view लेते हो तो उसमें से बहुत सारे आपको ट्रेंड्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, which could be helpful to you in forming your assertions. Okay, फिर डेटा को किसी ना किसी से क्लासीफाई हम कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि हमारे पास, यू नो, उस क्लासिफिकेशन से क्या हमारे को कोई ट्रेंड नज़र आ रहा है. उस क्लासिफिकेशन के थ्रू व्हाटएवर जहाँ भी हमारे को ट्रुथ एंड फेयरनेस देना है या कोई असर्शन देना है, हम उसको वैलिडेट कर पाएंगे क्या. एक्सेल could also help us in some kind of cross validations. Okay, like authorization matrix हम चेक कर सकते हैं, उसका इतना लिमिट था,
जितना इधर मेरे पास बैलेंस आ रहा है, या फॉर एग्जांपल इसने ऑथराइज किया, इसके पास ऑथराइजिंग पावर थी या नहीं थी. ओके, सो यूजिंग VLOOKUPs एंड ऑल बिकम्स वेरी इजी, राइट. इसी तरह क्या ये चीज अकर कर रही है कहीं? ओके, आर डुप्लीकेट्स अकरिंग? ओके, आर गैप्स देयर? So you could also look for some kind of outliers through some kind of occurrences. So some of these objectives, we'll be seeing how we can use Excel again for all these kind of assertions. Okay, because ultimately audit के अंदर अपने को क्या करना है? We have to give our opinion on some kind of an assertion, and we'll be looking at Excel उसमें हमारा किस तरह से मदद कर सकता है. The first thing will be is, as I said, कि अपने को कहीं ना कहीं से डेटा चाहिए. Now, the data could be from, some kind of a text file or various other sources. But since there is a kind of a, I'll say, time constraint, I won't go much, deep into that. Okay. We'll be looking at, what is the kind of data we could import into Excel. Okay. So, I'll be taking an example of a text data. Okay. वो एक सेल फाइल है जो कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में है. Text का format, ASCII format. Okay, so we'll be looking at how we can get the data into Excel and then proceed to analyze it. So it will be kind of a logical sequence I'll be taking. Okay, now जो as I said जो data रहेगा वो data हमारे पास primarily अगर हम data type की बात करें तो हमारे पास 4 तरह का data रहता है Excel में. पहला होता है text data, which are some kind of characters and all that. Okay. फिर हमारे पास डेटा हो सकता है विच आर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है. फिर हमारे पास डेट डेटा हो सकता है. नो डेट के फ्रेंड्स बैक एंड पे हमेशा एक्सेल में एक नंबर ही रहता है. सो डेट फॉर एक्सेल इज अ नंबर. मींस जब एक्सेल कोई डेट आपको बता रहा है वो आपको डेट नहीं बता रहा, उसके बैक एंड पे जो उसका इंजन काम कर रहा है दैट इज वर्किंग विद सम काइंड ऑफ ए नंबर. और एक्सेल इस नंबर को क्या मानता है? वो डेट को मानता है डेज इलैप्स्ड सिंस 1/1/1900. तो okay, and the fourth form is boolean. Boolean means true or false. Okay, it means true or false. So बहुत सारी जो लॉजिकल कंडीशन है जैसे इफ कंडीशन है, एंड कंडीशन है, और कंडीशन है, ये सारी काम किस पर करती है? अल्टीमेटली सम काइंड ऑफ ट्रू और फॉल्स के ऊपर. थोड़ा सा एक डिस्टिंग्विशिंग जो हमारे पास कैरेक्टर रहता है वो ये रहता है कि टेक्स्ट वाला जो रहता है डेटा दैट इज जनरली लाइक लेफ्ट अलाइन्ड. ओके, और न्यूमेरिक डेटा हमारा जनरली राइट अलाइंड रहता है. डेट के बैक एंड में भी क्योंकि नंबर है, राइट, सो जनरली नंबर भी है, डेट्स भी आपको जो मिलेंगी मोस्टली आपको लेफ्ट अलाइन सॉरी अपना मतलब राइट अलाइन मिलेंगी बिकॉज बैक एंड पे उसके भी नंबर है. एंड बुलियन इज जनरली जनरली क्योंकि ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स अल्टीमेटली क्या बनते हैं? कोई ना कोई कैरेक्टर बनता है, तो दे आर इन मोर लाइक टेक्स्ट फॉर्मेट, राइट. तो उसका अलाइनमेंट मोस्टली टुवर्ड्स लेफ्ट रहता है. सो दैट इज जस्ट ए बिट ऑफ डिस्टिंक्शन, बट यस यू कैन चेंज इट आल्सो. सो उसके आगे सिंगल कोट डबल कोट लगा के आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं. बट बाय डिफॉल्ट अगर बात करूं दिस इज द जनरल थिंग व्हिच कम्स इन. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द फाइल व्हिच आई विल बी कंसीडरिंग. ओके, सो मेरे पास क्या है? एक सेल्स फाइल है. ओके, सेल्स फाइल को देखूं तो इस सेल्स फाइल के अंदर कुछ डेट्स है, कुछ इनवॉइस नंबर्स हैं. ओके, एंड फिर कुछ प्रोडक्ट कोड भी हैं, कुछ कस्टमर नेम्स भी हैं, some rates are there, IGST है, CGST है, SGST है, कुछ amounts है. So this is a kind of a sales file which has got some data. But अब अगर इसमें text file में मैं as it is सोचूं कुछ analysis कर पाऊं तो there are hardly any capabilities. Okay, क्योंकि text file में आपके पास data analytical capabilities नहीं होती, जबकि अगर मैं बात करूं अपना Excel का, Excel has got lot of data analytical capabilities. So first thing we'll be looking at is how we can convert text to some kind of data. Okay, जो एक फाइल मेरे पास txt फॉर्मेट में थी and उसको किस तरह से मैं डेटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ. So I believe many people would be already doing it and knowing about it. Okay, since बहुत लोगों ने recently बैंक ऑडिट किया होगा and बैंक ऑडिट में भी you must have got lot of text files which would have converted into that. So my initial question is how many people can't do it? Let me put it the other way, because if there are some people who can't do it, then I'll go a bit slow
If everybody else knows how to do it, then I could go a bit fast. So my pace, okay. So we got some who are not. So I'll just go a bit slow, okay. Now, जो हमारा टेक्स्ट फाइल का इंपोर्ट है, ये जनरली हमारे पास दो तरीके हैं. या तो उसको कॉपी पेस्ट करके टेक्स्ट टू कॉलम्स कर सकते हैं. दूसरा तरीका है कि वी कैन गो टू फाइल, एंड फाइल में मैं ओपन में जाता हूँ, ओके. ओपन में आई जस्ट गो टू माई पीसी, आई गो टू द डेस्कटॉप जहाँ पर मेरी वो फाइल स्टोर्ड है. बट इधर मेरे को कोई फाइल टेक्स्ट वाली दिख नहीं रही. रीजन इज कि इधर आ रहा है ऑल एक्सेल फाइल्स. So first thing I have to do is I have to convert it into some kind of text files. तो जैसे ही मैं text file करता हूँ तो इधर मेरे पास एक text file आ जाता है. This is the file I want to import. Okay. So just click on open. ना जैसे ही open करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि आपके पास एक 3-step wizard आ जाता है जो 3 steps के अंदर किसी भी text file को Excel में convert कर सकता है. Okay. Now अब अगर इसको थोड़ा सा समझ ले, see because based on my experience in last so many years, you know, one fact which I think so everybody would agree with me is कि honestly सबसे पहले एक मेरा उसके अंदर वो है कि मैंने जितना एक्सेल सीखा है पंगे लेके सीखा है. एंड आई बिलीव हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे ही सीखता है. ओके कोई बता देता है यार ये तरीका है, अच्छा तरीका है, इस तरह से कर ले जल्दी काम हो जाएगा, एंड ही adopts that. Okay. And I think so most of us have learned by hit and trial rather than going to any formal training or reading any book about it and getting. So क्या होता है कि हमारे को ना जनरली ये तो मालूम होता है कि इस तरह से हो जाता है. क्यों होता है कई बार नहीं मालूम होता, राइट. Whereas अगर वो समझ आ जाए क्यों होता है तो then you know the thing becomes much easier, क्योंकि उस knowledge को आप फिर कहीं भी लगा सकते हो. That rather than one place you could use that many places. Okay. So my point in this whole thing is to teach you fishing, not give you fish. So I'll be going more with the concepts. What are the concepts and where you could apply those concepts? I'll going the both ways, making you aware of the concepts as well as how to apply those concepts. Now, अब अगर इसके अंदर देखें तो एक चीज समझिए, जो मेरे पास डेटा आया ये किसी ना किसी डेटाबेस से आया है. जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटा किस में होता है, कुछ रोज होती है, कुछ कॉलम्स होती हैं. मींस डेटाबेस में टेबल्स होते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं और कुछ फील्ड्स होते हैं. सो अगेन डेटाबेस की बात करें तो डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स. जब एक डेटाबेस को आपने एक्सपोर्ट कर दिया इनटू आई विल से अ टेक्स्ट फाइल तो रोज तो फ्रेंड्स ऑटोमेटिक बन जाएंगे. बट द पॉइंट इज एक्सेल को किस तरह से समझाएं कि यहाँ पर डेट खत्म होती है और यहाँ पे इनवॉइस नंबर शुरू हो जाता है, यहाँ पर इनवॉइस नंबर खत्म होता है और यहाँ पर प्रोडक्ट कोड शुरू हो जाता है. मींस देयर शुड बी सम वे ऑफ एक्सप्लेनिंग टू एक्सेल कि उसको यहाँ तक का डेटा तो एक फील्ड में लेना है, यहाँ के बाद उसको अगले फील्ड में लेके जाना है. तो उसको कोई ना कोई तरीका उसको होना चाहिए समझाने का. सो ब्रॉडली हमारे पास 2 तरीके होते हैं. पहला जिसको हम बोलते हैं डीलिमिटेड. डीलिमिटेड का मतलब होता है, लिमिट का मतलब होता है हद, राइट. सो डीलिमिटेड मीन्स किसी ना किसी तरीके से हद बनाई हुई है हर फील्ड की या हर कॉलम की. सो हर कॉलम के एंड पे कोई ना कोई एंड ऑफ द फील्ड मार्कर होगा ना. वो फील्ड मार्कर स्पेस हो सकती है, वो फील्ड मार्कर डैश हो सकती है, वो फील्ड मार्कर टैब हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट. सो एनी की, एनी एस्काई की कैन एक्ट एज ए एंड ऑफ द फील्ड मार्कर. तो इसमें क्या होता है कि जब डीलिमिटेड हम लेते हैं तो उसके अंदर there is a query, there is no audio. Is it, am I audible? Okay. So क्या रहता है कि जो एंड ऑफ द फील्ड मार्कर है वो किसी ना किसी डीलिमिटर से मार्क किए जाते हैं. So कहने का मतलब है उसको फील्ड में अलग अलग करने का एक तरीका होता है हमारा डीलिमिटेड, जहां कोई ना कोई डीलिमिटर एक्ट करेगा उसको अगले फील्ड में ले जाने के लिए. तो दूसरा तरीका हमारे पास रहता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड विड्थ. फिक्स्ड विड्थ का मतलब है कि लाइक दिस इज फिक्स्ड विड्थ, राइट. फिक्स्ड विड्थ का मतलब है कि हर फील्ड का फील्ड विड्थ फिक्स है. लाइक फर्स्ट इज फॉर 10, सेकंड इज फॉर 30, थर्ड इज फॉर 8, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो क्या होगा कि उसके अंदर हर फील्ड का एक लेंथ जो है वो डिफाइंड रहता है. ओके.
Now 99.9% ऑफ द टाइम्स एक्सेल को खुद ही समझ आ जाता है ये फिक्स विड्थ है या ये डिलिमिटेड है. तो आप देखेंगे कि एक्सेल अपने आप ही डिसाइड कर लेता है ओके कि ये फिक्स विड्थ है एंड या इसके अंदर कोई ना कोई. तो इसके अंदर देखें तो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली डिटरमिन कर लिया दिस इज काइंड ऑफ ए डिलिमिटेड. ओके नाउ बिकॉज ये डिलिमिटेड है मींस कोई ना कोई कैरेक्टर एक्ट कर रहा है एज ए डिलिमिटर. सो इफ यू जस्ट गो टू नेक्स्ट, सो व्हाट यू विल फाइंड इज कि अगर मैं इसको हटा देता हूं तो आप देखेंगे वही वाला लाइन आ गया. बट अगर मैं इसको डिलिमिटर बता देता हूं कि टैब इज ए डिलिमिटर बिकॉज टैब इज काइंड ऑफ ए हिडन वन, तो एक्सेल अपने आप ही ढूंढ लेता है कि इसके अंदर टैब है राइट. सो जैसे ही मैं इसको टैब करता हूं तो अभी आप देखिए पूरा का पूरा डेटा अलग अलग फील्ड्स में चला जाता है. सो आपके फील्ड मार्कर आगे, सो उसके आगे का डेटा गोज टू द नेक्स्ट वन. ओके सो जैसे ही मैं टैब लेता हूं तो अभी आप देखेंगे डेटा को उसने ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर दिया इनटू द डिफरेंट कॉलम्स. अगेन आई गो टू नेक्स्ट. अभी नेक्स्ट में जाता हूं तो पहला मेरा जो फील्ड है दैट इज ए डेट फील्ड. अब इसको जनरल छोड़ूंगा तो एक्सेल को समझ में नहीं आएगा कि ये डेट है. एक्सेल सोचेगा कोई नंबर है फिर कोई कैरेक्टर है मींस वो इसको कैरेक्टर फील्ड ले लेगा. एंड डेट जो है वो एक्सेल में अलग ही तरीके से हैंडल होती है. हमने पहले बात किया है बिकॉज डेट के बैक एंड पे कोई ना कोई नंबर रहता है. इट इज ओनली थ्रू नंबर्स दैट ऑल द डेट कैलकुलेशंस टेक प्लेस. सो एक्सेल को समझाने के लिए कि ये डेट है हमारे को यहाँ पर उसके जनरल को ओवरराइड करना पड़ेगा. उसको बोलना पड़ेगा नहीं इट्स ए डेट. एंड बिकॉज इट्स ए डेट फिर उसको ये भी हमारे को समझाना पड़ेगा किस तरह का डेट है. तो इधर आप देखें तो दिस डेट इज DMY. Okay, because in Indian format is DMY. If you get data from US, could be MDY or YDM or for that matter any other format. So main thing is कि आपको input समझाना पड़ेगा कि जो input date है वो किस तरह का date है. Okay, here we are not talking of output. Here we are talking about input कि आपका जो input date आ रहा है वो किस तरह का है. और जब मैंने उसको बता दिया वो DMY है, बाकी चीजें I think so are all okay. Okay. So what I go to is I just click on finish. जैसे इसको फिनिश करता हूं आप देखिए वो जो डेटा था दैट कम्स इन डिफरेंट कॉलम्स. और अगर एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप में आता हूं मैं और इसको डबल क्लिक करता हूं जैसे ही ओके किसी भी फील्ड सेपरेटर में आकर डबल क्लिक करता हूं तो मेरा डेटा आप देखिए वो अलग अलग फील्ड्स में आ गया. मींस वो डेटा जो टेक्स्ट में था वो भी मेरे लिए एक डेटाबेस बन गया. उस डेटाबेस में अभी मैं कुछ एनालिसिस कर सकता हूं. बट दोस्तों इस डेटाबेस में मेरे को एक प्रॉब्लम आ गया. मेरा प्रॉब्लम ये आ गया कि समहाउ कंपनी ने जिसने भी डेटा एक्सपोर्ट किया है उसमें कुछ प्रॉब्लम था या व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज. इधर मेरे पास प्रोडक्ट और कस्टमर मेरे पास एक ही कॉलम में आ रहा है. जबकि अगर मेरे को कस्टमर वाइज एनालिसिस चाहिए तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि जो customer should be in one column and product should be other column. Because अगर मेरे को product wise analysis करना है तो यहाँ पर तो दोनों combined है. I can't do it. Okay. Now इसको अगर मेरे को दो पार्ट में split करना है, कोई मेरे को बताएगा how I can do it. Anybody in the chat. Let's interact also a bit so that I can see कि you're understanding the thing and I am able to understand you, so let it be interactive also. So anybody in the chat who could just tell me कि अगर इसको मेरे को प्रोडक्ट अलग करना है और मेरे को इसमें से कंपनी अलग करना है तो किस तरह से कर सकता हूँ. ओके कैन बी डन बोथ थ्रू फिक्स्ड विड्थ एंड राहुल जी यू आर राइट इट कुड बी डन थ्रू फिक्स्ड विड्थ. तो मेरी थोड़ा सा समझ में आ रहा है बट मेरा क्वेश्चन है अगर आप डिलिमिटर 1 मिनट में आपकी बात मान लूं मैं कि डिलिमिटेड है तो मेरा क्वेश्चन अब आपसे है इसमें डिलिमिटर कौन सा यूज करेंगे. पल्लवी जी ट्रिम यूज होता है सिर्फ स्पेस को कम करने के लिए. राहुल अगर मैं डैश को डिलिमिटर यूज करूंगा इसमें देखिए 3 डैश है, इसमें सिर्फ 1 डैश है, इसमें 2 डैशेस हैं. मींस वो कई सारे कॉलम क्रिएट कर देगा. एट एवरी डैश इट विल गिव मी अ न्यू कॉलम. सो पता चलेगा कि मार्स एक कॉलम में आ रहा है और गैलेक्सी किसी दूसरे कॉलम में चला गया. ओके A001 जैसे 4 डिजिट्स हैं इसमें तो उसको राइट या लेफ्ट के थ्रू यूज करके हम लोग नहीं कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके सो लेफ्ट यूज करके आई एग्री विद यू. लेफ्ट यूज करके हम उसमें से प्रोडक्ट तो निकाल लेंगे बट मेरा क्वेश्चन है मार्स और प्लूटो को कहां लेके जाएं.
ओके, सो लेफ्ट पहले निकाल लेंगे और फिर किसी तरह से लेफ्ट को अलग कर लेंगे. गुड गुड थॉट्स, यू नो. सी, आई ऑलवेज से कि एक्सेल में कोई हर काम का एक तरीका नहीं है. देयर कुड बी मेनी अदर वेज. Okay, so there's an excellent suggestion which says replace 3 with 1. तो कई सारे उसको कर सकते हैं. Then Pallavi also suggests good flash fill. That's a great option which is there. So you know, I'm getting some very good suggestions from you. So okay, so the point is कि इसके अंदर तरीका क्या हो सकता है. लाइक एक तरीका हो सकता है टेक्स्ट टू कॉलम यूजिंग फिक्स्ड विड्थ. तो फिक्स्ड विड्थ से क्या होगा कि A001 को अलग कर लो और बाकी को अलग ले जाओ. एंड फिर एज किसी ने सजेस्ट किया फाइंड डैश रिप्लेस विद नथिंग से हम हटा सकते हैं. बट एक बहुत अच्छा सजेशन आया विच इज फ्रॉम पल्लवी, विच शी सेज कि कैन वी यूज फ्लैश फिल. ओके, नाउ हम ये फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं. ओके, and flash fill is a function which has come in 2013 Excel version. Okay, तो जिनके पास पुराना version है they won't be able to use flash fill. But flash fill, let me tell you, is the magic which has come in. Okay, because with flash fill, a lot of AI ML is involved. With the result, जिस काम को आपको शायद maybe days लगेंगे, you can do perhaps in seconds or minutes. That is the power of flash fill. Okay, and flash fill is 2013 version and above. Okay, so let's first have a look at flash fill. तो flash fill मेरे को क्या करना है, मेरे को simple इसका एक product code निकालना है. And product code लगा के just I use flash fill. One click, my job is done. Okay, I've used the function flash fill. Flash fill क्या करता है, वो आपका एग्जाम्पल लेता है, आपके लॉजिक को समझने की कोशिश करता है और उस लॉजिक को रेप्लिकेट कर देता है. इट्स मोर लाइक मशीन लर्निंग, राइट? इट इन्वॉल्व्स ML एंड AI एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. सो वो क्या कर रहा है, वो आपको समझने की कोशिश कर रहा है. इसने A001 निकाला, मींस ये पहले 4 कैरेक्टर निकालना चाह रहा है और उसने बाकी सब में निकाल दिया. जस्ट वन क्लिक, माय एंटायर डेटा गेट्स डन, राइट? तभी देखे तो मेरा एंटायर डेटा इसमें आ गया. दैट फ्रेंड्स इज द पावर ऑफ द मैजिकल फ्लैश फिल. लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूं, मैजिक सिर्फ तभी तक होता है जब तक हमारे को समझ नहीं आती है. जब हमारे को समझ आ जाती है तो मैजिक doesn't remain a magic. So the only thing is we need to understand what that magic is and how it does it. एक बार हमारी अंडरस्टैंडिंग आ जाए ना तो फिर वो मैजिक नहीं बचता. बट flash fill is a great tool. You can, it's I simply say it's a beautiful tool जो दिनों का काम है. It can do within minutes or probably seconds, right? So अगला देखते हैं. I say Mars and Pluto. Okay. Now flash fill का ऑप्शन दोस्तों हमारे पास डेटा में रहता है. एंड डेटा के अंदर जाएंगे तो इधर डेटा टूल्स के अंदर इधर हमारे पास फ्लैश फिल रहता है. अब फ्लैश फिल को अगर पढ़िए, वो बोलता है ऑटोमेटिकली फिल इन वैल्यूज, एंटर ए कपल ऑफ एग्जांपल्स, एंड वो उसी चीज को रेप्लिकेट कर. सो इट वर्क्स लाइक ए मंकी, इट वर्क्स लाइक ए मंकी. जो कुछ आपने किया है वो उसको रिपीट कर देता है. दैट्स ऑल. ओके, तभी इसमें मैं जैसे ही आके इसमें फ्लैश फिल करता हूँ एंड बिंगो. ओके, अब उसको समझ में आ गया कि जो कुछ भी डैश से आगे लिखा है ना, जैसे मार्स में लिखा हुआ है, डैश के आगे कुछ लिखा हुआ है, मेरे को यही काम करना है. मेरे को सब में से वही डेटा निकालना है. नो, irrespective of there are 2 characters, irrespective of there are 3 words, irrespective of whatever data it is. बहुत बार हो सकता है पहले से हमारा ना रिजल्ट आए, हमारे को शायद हो सकता है उसको एक आध बार और ट्रेन करना पड़े, दूसरे में उसको समझाना पड़े, तो उसके बाद वो ठीक कर देगा. नॉर्मली बिकॉज आई डू लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स. So what I found is कि 2-3 बार में we get the result. अगर कोई complicated भी है तो 2-3 बार में you get the result. Okay, but it works like magic. It works like magic. Okay. Now अभी आप देखिए तो just with one click I got everything. Okay. So let me just name it as product. This would now become a customer. Okay, see whatever solutions you give, those could also work. Text to columns कर सकते हैं fixed width से, तो हमारा प्रोडक्ट एक कॉलम में आ जाएगा, बाकी दूसरे कॉलम में आ जाएगा, एंड देन फाइंड एंड रिप्लेस है डैश हम खत्म कर सकते हैं. ओके, Swaran ji, I think so you got an idea of what's a flash fill.
The flash fill is a function, which has come in 2013 onwards. Okay, और ये डेटा में रहता है, इधर आपके पास फ्लैश फिल होता है. तो फ्लैश फिल क्या करता है कि फ्लैश फिल जो आपका लॉजिक है उसको रेप्लिकेट कर देता है. इट्स एज सिंपल एज दैट. व्हाटएवर लॉजिक इट ट्राइज टू गेस योर लॉजिक and it replicates that logic. Okay. Now, what's the Anchal alternative flash fill वाला है ही 2013 के बाद. See, one thing I'd like to tell you. मतलब एक चीज sure I'm I always say that we need to invest in technology. That is, I'm a firm believer of that. Okay. If we want to grow, okay, if you want to go forward, okay, one thing is pakka we'll have to invest in technology. We'll have to harness technology. Technology can help us develop our practices and everything like anything, but wo thoda sa investment mangti hai, and investment is not heavy, right? So what I'll say is ki go with the latest ones. Okay, 2013 onward, because some features we'll be discussing which are available only in the latest version. And at the same time, what I said was ki cost of technology is not high. Not cost, I'll say investment on technology is also not very high. अभी मैंने आपको बताया ना, मैं 1970s की बात कर रहा हूँ. उस समय विजीकैल्क आता था $100 का, राइट? आज की डेट में अगर जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट 365 you get for something like 5,000 odd for 5 PCs. अगर पर पीसी की बात करें तो 1,1100, which is not a high price to pay. Okay, it's a very nominal thing you'd have for one of these, right? But I can tell you one thing, जो benefits है they far outweigh your investment. Okay, like a simple say example, if Anchal says she's using 2010, मेरा कहना है अगर 2010 से अगर आप आगे चले गए एंड इस एक प्रोसेस को आपको करने में जिसमें अदरवाइज अगर आप इसमें से करेंगे you'll have to find some way, एंड बहुत बार आपके पास उसका भी कोई तरीका नहीं निकलता. So a lot of time you got to do it manually. और वो जो manual है वो कई दिनों का काम है. Because I take a lot of these kind of training sessions, I do a lot of these kind of trainings. Just yesterday I got a message from somebody whom I trained, और वो यही बोल रहा था मेरे को कि सर using flash fill जो आपने सिखाया था, जो काम में मेरे 2 से 3 man days लगने थे, I could do in 2 minutes. So friends, that is a kind of time saving. So मेरा ये कहना है अगर हमारे को grow करना है, right, and this is a time for growth, we'll have to जैसे रवीश was saying कि कोविड ने एक थ्रेट था, हमें उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है. सो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हमारे को उसको ग्रो करना है किसी ना किसी तरह से. वील हैव टू गो टू अ न्यू लेवल ऑफ वर्किंग, क्योंकि पुराना डर्रा नहीं चलने वाला. That is a fact and thing. So everybody should agree to it. Okay, COVID is not going to go. We'll have to evolve. That is for sure. Okay. Or growth is the only way, you need to grow, only then you can go up. So सबसे पहले I generally say there are हमारे यहाँ 3 चीजें बोली जाती है. First is the mindset, then the skill set, and then the tool set. The 3 things are very important when you talk of growth. Okay, तो सबसे पहले क्या है कि अपने को mindset लाना पड़ेगा कि yes, I want to grow, and for that I could be using tools. So tools have also to be gone. And the third is skill set. Those skills also have to be developed. So if you really want to, you want to boost your productivity, you want to go up and up, then, these are the things you'll have to adopt. Okay. So I'm a firm believer in technology. And let me tell you, these days, COVID has been, kind of a disruptor. It's been a kind of disruptor in the way कि जो चीजें हमने कभी सोची नहीं थी, okay, और वो चीजें आज हम कर रहे हैं. ओके, सो अभी लाइक रवीश से स्टार्टिंग में बात हो रही थी रिगार्डिंग दिस कोविड. ओके, सो कोविड हैज ब्रॉट इन सोशल डिस्टेंसिंग, बट क्या हमने सोचा था कि यू सिटिंग इन योर होम्स एंड योर ऑफिसेज एंड आई सिटिंग इन माय होम और माय ऑफिस एंड वी कुड बी इंटरेक्टिंग वर्चुअली? आई थिंक सो प्रायर टू कोविड नोबडी कुड हैव थॉट ऑफ दैट. शायद किसी ने जूम यूज भी ना किया हो, बट टुडे डे इन एंड डे आउट वी आर यूजिंग. सो this is a time for digital transformation, and this is a time when you need to transform your mindset also.
So one thing which I always say is that, okay, that we need to go with the times. We need to evolve with the times. So let's take the latest ones. Okay. So that is a bit of my take on that. Okay. I can tell you it's a big time saver which is there. Okay. So what we got is now we got some data, which is there. Okay. अभी हमारे पास data आ गया, हमारे पास product आ गया, customer आ गया, अभी data हमने capture कर लिया. Now, okay, so हमने after doing text to columns, we have taken the data to columns, taken it to Excel. The next step is somehow we got to clean the data. Okay, उस data को clean करने के लिए we could be using some functions. Okay, एक हम use कर सकते हैं flash fill. I think so. We've already done it. I think so. You all know, understand what is the flash fill. Okay. And now we'd also be discussing left. Somebody earlier mentioned left. See, left क्या करता है आपके लिए किसी भी data में से किसी भी cell में से leftmost characters निकाल के ले आता है. Okay. Then another great function we have is sort. Sort is a wonderful function with which you can sort the data according to your criteria. जो भी criteria आप चाहे उसके हिसाब से उसकी sorting कर सकता है. And not only value से कर सकता है, even color से कर सकता है. So plenty of different options are there. We'll be looking at those options. Then friends, you can also filter the data. Let me tell you, filter is a great tool. And honestly telling you, we don't even use a fraction of capabilities which are there in filter. Okay. So a lot of times I do some programs where I say कि यार कभी okay, I'll teach you filter. बोलते सर filter में क्या है? Filter तो अपने 20 साल से यूज कर रहे हैं. But the point is using or efficiently using, दोनों में difference होता है. Yeah, using it to the good capacity or optimum capacity, there is a difference between both of these. So we'll be looking a bit at filter and आप खुद realize कीजिएगा कि कितना powerful function है हमारे पास filter. And that is why एक चीज सोचिए, filter एक ऐसा function है जो Excel के हर version के साथ कुछ ना कुछ enhance होके आता है. So obviously आप सोचिए कि अगर एक फंक्शन जो हर वर्जन के साथ एनहांस हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, बहुत काम का फंक्शन है. जब काम का फंक्शन होता है तभी उसका एनहांसमेंट होता है. जो यूजलेस फंक्शन होता है, किसी ने यूज ही नहीं करना, तो उसमें एनहांसमेंट की जरूरत ही क्या है, राइट. सो कोई अगर फंक्शन हर वर्जन में एनहांस हो रहा है तो इसका मतलब है कि मींस पीपल आर यूजिंग इट, राइट. फिर एक फंक्शन हम देखेंगे VLOOKUP, okay, which is one of the star functions in Excel. Okay, but lot of people have found they are scared of VLOOKUP, whereas VLOOKUP is a beautiful function and helps a lot. Then अभी कुछ देर पहले somebody talked about trim also in the chat. Okay, trim एक ऐसा function है जिससे कि extra spaces अपने खत्म कर सकते हैं, just like trimming, cutting, right? So extra spaces को काट सकता है, सफाई के काम आता है whenever you are talking of data. Then दो functions की बात करूंगा which have come latest functions. These are available only in 365. Okay, one is XLOOKUP. तो अगर आपके पास Excel 2019 version है या आपके पास Microsoft 365 है, these are the latest functions. Are beautiful functions which have come in. So Excel ने बहुत सारे नए functions लेके आ रहा है. So that is one of the reasons I say go with the latest one, because each of these functions have got capabilities which are much enhanced compared to what we have been using since last maybe 20 years. Then एक और बेहतरीन function आया which is unique. So in the next process what we'll do is we'll see how we can clean the data, how we can use flash fill in cleaning, how you can use left in cleaning your data. कुछ features में इस्तेमाल करके we'll be cleaning the data and making it usable for some kind of analysis. Okay. Now again going back to the previous sheet. Okay, just to make it better, what I'll do is I'll just take this sheet and I'll just copy it to my main sheet. Okay, I'll just take this sheet and I'll copy it to my main sheet. क्योंकि वहाँ मेरे पास कुछ और tables भी हैं जिसको हम इस्तेमाल करेंगे. Okay, so I've got the sheet here. Okay, so flash fill अपने देख लिया. Flash fill से हमने प्रोडक्ट और कस्टमर को सेग्रीगेट भी कर लिया. सो
इस कॉलम का शायद अब मेरे लिए कोई इस्तेमाल नहीं है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट डिलीट दिस टू हैव अ काइंड ऑफ अ क्लीन डेटा। तो मेरे पास डेट आ गया, मेरे पास इनवॉइस नंबर आ गया, मेरे पास प्रोडक्ट कोड आ गया, कस्टमर आ गया, रेट आ गया, क्वांटिटी आ गया, IGST, SGS, CGST, SGST अमाउंट वगैरह ये सब फील्ड्स आ गए। Just to have better understandability, I can, you know, just format them as some kind of accounting numbers, just to make it easier. Quantity में मेरे को decimal का जरूरत नहीं है, so I can just remove the decimals. Now this data becomes more presentable, more understandable. Okay, so once we are with the data, okay, अभी हमारे को, मैंने बोला ना कुछ चीजें हमें एग्जिस्टेंस असर्शन चेक करनी पड़ती हैं, हमें देखना है कि हमारे यहाँ कितने कस्टमर्स हैं। ओके ना, अगर दूसरी शीट में देखूं, मेरे पास हर कस्टमर का GSTIN नंबर भी है। ओके एंड इसमें अगर देखता हूं तो मेरे पास अराउंड 10 कस्टमर्स हैं, राइट। बट आई वांट टू चेक कि मेरे डेटा के अंदर जो कस्टमर्स है क्या यही है, मींस मेरे पास सबका GSTIN नंबर है या नहीं है। ओके नाउ वन वे इज, अगर इसमें से मेरे को यूनिक आइटम्स निकालनी है तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, यू आर ऑल एक्सेल यूजर्स, सो कौन कौन से फंक्शंस आपके हिसाब से यू कैन यूज टू कैप्चर यूनिक? एनीबॉडी इन द चैट? ओके, वन इज फिल्टर करके, गुड, फिल्टर करके निकाल सकते हैं। ओके, राहुल जी सेज रिमूव डुप्लीकेट, परफेक्ट, रिमूव डुप्लीकेट से भी निकाल सकते हैं, यस। Pallavi says duplicate. No, duplicate kya? There's no function like duplicate here. Okay, you got to remove duplicates. Agreed. Perfect. So for extracting duplicates, maybe unique, you could also go for conditional formatting. Okay, remove duplicates. All these functions are there. Okay, but क्या है कि VLOOKUP. Okay, lookup से duplicates. Okay. मेरे को यूनिक वैल्यूज निकालनी है। अंकित, आई वांट यूनिक वैल्यूज आउट ऑफ दिस। आई वांट टू नो हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर एंड आई वांट टू नो द नेम ऑफ द कस्टमर्स। ओके, ग्रेट, पिवट टेबल। सो अरुण जी से, अंकित भार्गव से पिवट टेबल्स, ग्रेट। सो पिवट टेबल्स भी हमारे पास यूनिक आ जाते हैं, फिल्टर से भी आ सकते हैं, राइट। But let me tell you one thing, you know, remove duplicate में क्या करना पड़ेगा, इसमें से अगर मैं इसको कहीं कॉपी करूंगा फिर इसमें से निकालूंगा रिमूव डुप्लीकेट, तो वो डुप्लीकेट हट गया, मेरे पास एक स्टैटिक टेबल आ गया। मेरा कहना है उसके नीचे थोड़ा सा अगर और डेटा ऐड होता है तो क्या होगा? ओके, रिमूव डुप्लीकेट से यू नो बिकम्स टफ। स्टैटिक डेटा आ सकता है और उसके अदरवाइज यू नो इट इज नॉट डायनामिक। पिवट टेबल से कुछ हद तक यस हो सकता है, जैसे हम पिवट टेबल क्रिएट करेंगे हमारे पास यूनिक आइटम आ जाएंगी, रिफ्रेश करेंगे उसके अंदर हमारे पास यूनिक आइटम आ सकती हैं। ओके, सो अभी अगर देखें तो इसमें एक नया फंक्शन आया, दिस इज द लेटेस्ट वन इन 2019 और माइक्रोसॉफ्ट 365। अभी आपके पास फंक्शन ही आ गया यूनिक। ओके, अभी आपके पास एक नया फंक्शन आ गया है यूनिक। ओके, एंड मैं यूनिक में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ ये इसके अंदर कई सारे कैपेबिलिटीज है, बट राइट नाउ वी वोंट गो वेरी फार इनटू दिस थिंग। आई जस्ट टू सेव ऑन टाइम। ओके, मैंने पूरा एरे ले लिया एंड आई जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड यू सी व्हाट आई गेट आर यूनिक आइटम्स। What I get are unique items, and this is dynamic because this is based on this array. So these are array functions. So किसी ज़माने में you know Excel में array functions होते थे जो control shift enter से हम ऑपरेट करते थे, but अभी बहुत सारे array functions आ गए हैं which don't need you know CSV formulas. Okay, now this unique is an array function. आपके पास just one click you know you get all the unique items. अब इसके अंदर अगर देखेंगे तो we got how many? We got you know 10 customers here. और इधर भी मेरे पास 10 कस्टमर्स है, तो मेरा पहला असर्शन कि सब कस्टमर का मेरे पास GSTN है, दैट इज कंफर्म। वी गॉट 10 कस्टमर्स, डेटा रिलेट टू दीज 10 कस्टमर्स, और इन 10 कस्टमर्स का मेरे पास GSTIN भी है। मुझे कुछ अगर चेक करना है आई कैन डू इट। ओके, आई थिंक सो द पॉइंट इज क्लियर विद यू नाउ। सो मैंने क्या किया, यूनिक यूज करके मैंने उसमें से यूनिक आइटम्स निकाल ली। एक और लेटेस्ट फंक्शन आया है you know which again is a wonderful function। इसी के अंदर ये सॉर्ट भी आ गया, तो भी मैं चाहूँ तो मैं इसी को ही ना डेटा को सॉर्ट भी कर सकता हूँ एट द सेम टाइम। ओके,
मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट आए, बट वो लिस्ट मेरे को सॉर्टेड चाहिए, एंड बिंगो, सभी मेरी लिस्ट सॉर्टेड है। पहले अर्थ आ रहा है, फिर गैलेक्सी आ रहा है, फिर मार्स एंड प्लूटो आ रहा है, फिर मिल्की वे आ रहा है, देन मूनलाइट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, so these two are latest functions which are available in Microsoft 365 as well as Excel 2019. My belief is 365 works a bit better because जो भी नया feature आता है you get in Microsoft 365. So 365 is the latest place where whatever new feature Microsoft brings in, that is launched. And obviously यार कोई नया feature लाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज होगी, because that would be based on some kind of a challenge, some kind of a pain which everybody is facing. तो कोई भी नया solution आता है तो किसी ना किसी challenge को खत्म करने के लिए आता है. So obviously would be some good feature. So ये एक constant challenge था, how to find unique items, okay, how to have a sorted list somewhere else, right? So अगर sorting करनी है, इस data का sorting तो हो सकता है, but अगर मेरे को sorted list अलग जगह पे चाहिए तो then it was always a challenge how to take it there. सो अभी ये वंडरफुल एरे फंक्शन आ गया तो सॉर्टिंग में उधर नहीं, मैं किसी नई जगह पे भी लेके जा सकता हूँ. ओके, सो दीज आर टू न्यू फंक्शंस व्हिच आई थॉट टू इंट्रोड्यूस यू, एंड दीज आर ग्रेट व्हेन यू आर एनालाइजिंग, क्योंकि जब ढेर सारा डेटा होता है ना उस समय ये छोटी छोटी चीजें आपका बहुत टाइम सेव करती हैं. बिकॉज यू सेड पिवट टेबल से हो सकता है, यस यूनिक पिवट टेबल से निकल सकता है. ओके, समबडी सेड रिमूव डुप्लीकेट से हो सकता है, बट रिमूव डुप्लीकेट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे को किसी दूसरी जगह पेस्ट करना पड़ेगा, फिर रिमूव डुप्लीकेट करूंगा. And that doesn't work dynamically. That is just a one-time process. Okay, जबकि ये वाला डायनेमिकली करे, इसमें मैं 2 नाम और ऐड करता हूँ तो वो भी यूनिक आइटम्स में आ जाएंगे, बिकॉज ये उस एरे को ले रहा है सारे को. ओके, और अगर उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं तो डायनेमिकली भी काम करेगा. ओके, सो दीज आर टू फीचर्स विच आर ग्रेट फॉर आइडेंटिफाइंग. सो हमारा जब हम असर्शंस का बात कर रहे थे, एक हम कह रहे थे कि क्या वो चीज एग्जिस्ट करती है. एग्जिस्टेंस इज आल्सो वन ऑफ द असर्शंस व्हिच यू हैव टू सर्टिफाई कि ये चीज है. ओके, एंड आई हैव आल्सो बीन एबल टू क्रॉस वैलिडेट. ओके, ये मेरे 10 आइटम्स हैं, ये भी मेरे वही 10 आइटम्स हैं. ओके, सो आई कैन जस्ट आई कैन आल्सो जस्ट copy paste these items here. So I'll just copy it and take it to this sheet, perhaps somewhere like this one. Okay, so that I just paste it special. Okay, so अभी मेरे पास ये वाला आइटम्स भी आ गया और इधर मेरे पास ये चल ही रहा है, right? So we can see we got 10 items. Okay, so moving forward, अब हमने एग्जिस्टेंस भी देख लिया है और हमने हमारे को ये भी मालूम है इधर हमारा क्या है, जीएसटी है, नंबर भी है, हमारे पास कस्टमर भी है. एंड इसके अंदर हर कस्टमर का आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है. मैं ये चेक करना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि किसी बिल में गलती से लगना था आईजीएसटी, लग गया सीजीएसटी, या लगना था सीजीएसटी एसजीएसटी, लग गया आईजीएसटी. ओके, बिकॉज आईजीएसटी का मतलब है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन. ओके, एंड सीजीएसटी मीन्स लोकल ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस. ओके, नाउ अगर इससे मैं देखने लगूंगा तो आई कांट फाइंड इट एनीवे. इससे मुझे कुछ नहीं पता चल सकता. लेकिन उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को साथ में क्या चाहिए, मेरे को इसके साथ चाहिए GSTIN. इस सारे कस्टमर के साथ मेरे को एक और टेबल चाहिए विच इज नाउ GSTIN ऑफ द कस्टमर. मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे, कैसे लेके आ सकता हूं? Anybody in the chat? VLOOKUP. Great. So उसके लिए मैं क्या फंक्शन यूज कर सकता हूं? VLOOKUP. ना VLOOKUP की जब हम बात करते हैं, VLOOKUP क्या होते हैं, उसके अंदर 4 इनपुट होते हैं. ओके, VLOOKUP इज अ पार्ट ऑफ स्टेबल ऑफ फंक्शंस विद इन एक्सेल, जिसको बोलते हैं लुकअप फंक्शंस. तो लुकअप में हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास लुकअप रहता है, हमारे पास VLOOKUP रहता है, हमारे पास HLOOKUP रहता है, और अभी नया आ गया XLOOKUP. उसकी भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में. ओके, बट राइट नाउ यू ऑल सेड VLOOKUP, आई परफेक्टली एग्री विद यू. नाउ VLOOKUP के अंदर 4 आर्गुमेंट या 4 इनपुट रहते हैं. सबसे पहला इनपुट रहता है क्या ढूंढना है, दूसरा इनपुट रहता है कहाँ ढूंढना है, तीसरा इनपुट रहता है किस कॉलम से रिजल्ट चाहिए,
चौथा इनपुट रहता है कैसा रिजल्ट चाहिए। कैसा से मतलब है एग्जैक्ट चाहिए या अप्रोक्सीमेट चाहिए। ओके, सो हमारे पास वीलुकअप के अंदर 4 इनपुट, पहला क्या चाहिए, दूसरा कहां से चाहिए, चौथा तीसरा किस कॉलम से रिजल्ट चाहिए, एंड चौथा हमारे पास आता है रिजल्ट हमारे पास कैसा चाहिए, हाउ। सो व्हाट, वेयर, विच, हाउ, 4 चीजें हमें चाहिए। ओके, तो अगर मैं वी लुकअप के फॉर्मूला की बात करूं तो उसके अंदर भी ये 4 इनपुट बोल रहे हैं। फर्स्ट इज लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स व्हाट टू फाइंड। फिर आता है टेबल एरे। टेबल एरे मीन्स कहां से ढूंढना है, वेयर टू फाइंड। फिर आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मीन्स विच कॉलम यू वांट द रिजल्ट टू कम फ्रॉम। ओके, फिर बोलता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप इज व्हाट, इट इज द हाउ, कैसा रिजल्ट चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए या अप्रोक्सीमेट चाहिए। ओके, नाउ वी लुकअप जनरली हम समझते हैं इन द फॉर्म ऑफ, अभी यहां से हमारे को क्या चाहिए, लेट मी स्टार्ट विद, हमारे को क्या चाहिए, D5 चाहिए। क्या ढूंढना है मेरे को, मार्जिन फ्रूटो ढूंढना है। अभी मेरे को कहाँ ढूंढना है, मेरे को GSTIN में चाहिए और मेरे को इस एरिया में ढूंढना है। ओके, हमेशा ध्यान रखें जो वीलुकअप काम करता है, इट वर्क्स लाइक योर फिंगर। आप अगर मैनुअली फिजिकल वर्ल्ड में सोचिए, आप कोई चीज कैसे ढूंढते हैं, आप ऐसे ढूंढते हैं, ऐसे ऐसे ढूंढते हैं ना। प्रॉफिट लॉस में आपको देखना ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है, तो आप ऐसे आते हैं ट्रैवलिंग, तो प्रीवियस ईयर के लिए क्या होता है 1 2 3। ओके, तो ऐसे ऐसे ढूंढते हैं ना 1 2 3, तो वो उसी तरह वी लुकअप काम करता है। बट मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने कैसे ढूंढा, आपने ऐसे ढूंढा एंड फिर आप इधर गए, मींस यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो सर्चेबल कॉलम हैज टू बी द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, और रिजल्ट कहां से आएगा, कहीं ना कहीं उसके दाईं तरफ से आएगा। ओके, अब इसके अंदर बात करें तो प्रॉब्लम है, इसमें उल्टा है काम। कस्टमर इधर है और GST नंबर टू द लेफ्ट ऑफ इट। अभी मेरे पास क्या रास्ता है, मेरे पास रास्ता क्या है कि या तो मैं इसको कॉपी इधर करूं या इसको कॉपी उधर करूं, इंसर्ट उधर करूं, तो दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, बिकॉज वी लुकअप का वर्किंग हमेशा लेफ्ट टू राइट रहता है। ओके, आई थिंक सो, आर यू ऑल विद मी, आई मीन से इज द पेस ओके? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो मेरे पास 2 रास्ते हैं। वन इज कि मैं GSTN को इधर लेके आऊं या कस्टमर को मैं उधर इंसर्ट करूं। सो 2 वेज, बिकॉज इट वर्क्स लाइक दिस, इट डजंट वर्क लाइक दिस। ओके, या चूज जैसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड से फंक्शन लगा के मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। ओके, सो अभी मैं उसको थोड़ा सा आसान करता हूँ कि व्हाट आई डू इज आई जस्ट टेक GSTN कॉपी एंड मैंने इधर लेके आके इधर पेस्ट कर दिया। ओके, सो भी मैं लेफ्ट टू राइट चल सकता हूँ, राइट। सो आई जस्ट गो हियर, आई पुट इन VLOOKUP, what to find, margin Pluto, where to find this and this। ओके, तो अभी मेरे पास टेबल एरे भी आ गया। अभी तीसरा पूछता है कॉलम, किस कॉलम से रिजल्ट चाहिए, किस कॉलम से रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट मेरे को क्या चाहिए, GSTN चाहिए। तो मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, अब तीसरे इनपुट में, तीसरे आर्ग्यूमेंट में व्हाट शुड आई पुट इन हियर, एनीबॉडी इन द चैट? ग्रेट, ओके, सो विल बी पुटिंग इन 2, बिकॉज बात क्या हुई थी 1 2, राइट। सो विल बी पुटिंग इन 2। ओके, आफ्टर पुटिंग इन 2, अब वो बोलता है ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए। ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स का मतलब एग्जैक्ट मैच। तो इधर तो अपने को एग्जैक्ट मैच चाहिए, इधर अप्रोक्सीमेट का कुछ मतलब ही नहीं है, राइट। सो उसके लिए मैं या लिख सकता हूँ फॉल्स, या कंप्यूटर की भाषा की बात करूं तो फॉल्स इज सेम एज 0। और कंप्यूटर की भाषा की बात करूं तो हमने बात किया था बुलियन। ओके, तो फॉल्स मीन्स 0, ट्रू मीन्स 1। तो मैंने अभी क्या करता हूं, मैं इसके अंदर डाल देता हूं 0। ओके,
अभी मैंने 0 डाला, बट ओके, so I just click on that, तो अभी मेरे पास पहले वाले का GSTIN आ गया, right? So what I get is GSTIN number. Now going further, I just double click it, डबल क्लिक से कॉपी हो जाता है. अभी मेरे पास GSTIN आ गया, बट कुछ केसेस में उसने कुछ गड़बड़ निकाल दी है. वो बोलता है ये मिला नहीं है उसको, NAV is not available, उसको मिला नहीं है, some error is there. एंड ये कस्टमर कौन सा है? मिल्की वे. ओके, लेट्स सी. बट इधर मिल्की वे तो है, बट मिल्की वे का उसको नहीं मिला. ओके, बट द GSTIN इज देयर, बट उसको मिल्की वे का नहीं मिला, राइट? सो इधर हमने क्या डाले थे? यूनिक आइटम्स. ओके, तो मेरा भी आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है. ये मैंने फिगर्स कहाँ से लिया था? ये मैंने लिया था फ्रॉम सेल्स डेटा. ये मेरा दूसरा टेबल है, ओके, जो मैंने उनके मास्टर से इनकॉर्पोरेट किया है. नाउ माय क्वेश्चन इज दिस इज इक्वल टू दिस? यस और नो? अगर मैं डालूं दिस इज इक्वल टू दिस, ओके, इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस, सो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए? Anybody in the chat? True or false? Shiv, why false? Should it be true or should it be false? True. Okay, good. So मेरे पास true आना चाहिए because both are same, you know. Earth is equal to Earth. Fine. Okay, so it should be same. It should be true. So true आ गया, ठीक है. Agreed. Okay. But सारे आने चाहिए, obviously सारे आने चाहिए यार, सब सेम है, because वही 10 आइटम इधर है, वही 10 आइटम उधर है. बट जैसे ही मैं करता हूँ मेरे को क्या दिख रहा है? दिस इज फॉल्स. दिस मीन्स दिस मिल्की वे इज नॉट सेम एज दिस मिल्की वे. Pankaj is perfect. Okay, so there may be space. There may be space. तो क्या है कि इस मिल्की वे में हो सकता है कुछ स्पेस हो. ओके, देखिए एक स्पेस है और इस मिल्की वे में स्पेस नहीं है. सो वी लुकअप गोज फॉर द एग्जैक्ट मिसमैच. सो उसको क्या चाहिए? सेम स्पेस चाहिए. Now one of the cleaning processes you could use is, you know, something called as trim. Okay. Now trim क्या करता है? Trim उसमें से extra spaces को खत्म कर देता है, right? So spaces get trimmed. So trimmed is used to remove the spaces. So trim क्या करता है? आखिर में स्पेस है, शुरू में स्पेस है, उसको खत्म कर देगा. बट अगर दो वर्ड्स हैं उनके बीच में एक स्पेस रखेगा, एक्स्ट्रा स्पेस खत्म करेगा. So entirely spaces नहीं खत्म करता, wherever not required उसको खत्म करता है. Okay, so we'll use a function which is called trim. Okay, and within trim I've got this, click, okay, done, and extra space is removed, done. Control C, इधर मैं को डालता हूँ कंट्रोल पे स्पेशल. तो भी मैंने इसको ट्रिम किया और इधर डाल दिया. मीन्स अगेन ए पार्ट ऑफ क्लीनिंग, यू गॉट टू क्लीन द डेटा, राइट? नाउ दिस लुक एट सेल्स. वाओ, तो अभी ये मिल्की वे भी आ गया. सो उसको जो प्रॉब्लम हो रहा था, ओके, अब उसको जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको वो नहीं मिल रहा था बिकॉज दिस मिल्की वे वाज नॉट इक्वल टू दैट मिल्की वे, क्योंकि उसमें एक स्पेस था. सो वी लुकअप लुक्स फॉर एग्जैक्ट मैच. उसको सेम मैच चाहिए, नो एक्स्ट्रा स्पेसेस, क्लीन डेटा. सो वी लुकअप इज बेस्ट, यू नो, व्हेन द डेटा इज क्लीन. सो इट्स देन इट विल वर्क. ओके, विद मेसी डेटा या जहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, एग्जैक्ट नहीं मैच कर रहा है, वी लुकअप वोंट वर्क. ओके, okay, so in the process we have understood one more function which is trim. Now trim is used to again clean the data. Okay, so जहाँ भी extra spaces है, बीच में extra space है, end में space है, शुरू में space है, so all of them could be removed using the trim function. Okay, now as I said, Excel is ever evolving.
ठीक है ना, वो एक्सेल जो है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है। ओके, एंड जितना हर एक का जरूरत होता है, जितने सबके सामने चैलेंजेस आते हैं, उन सबको दूर करने के लिए एक्सेल कुछ ना कुछ नया इवॉल्व करता रहता है। अभी तक हमारे पास क्या है, somebody put in a you know लुकअप फंक्शन का भी किसी ने चैट में डाला था। ओके, निखिल इट सेड लुकअप वैल्यू, ठीक है, ये टॉक्ड अबाउट लुकअप फंक्शन। ओके, इसी तरह हमारे पास आ गया बट वी लुकअप इज फ्रॉम वर्टिकल लुकअप्स, राइट, वी लुकअप इज फ्रॉम वर्टिकल लुकअप्स। ओके, क्योंकि हमारा ज्यादातर डेटा वर्टिकल रहता है इसीलिए हम यूज करते हैं वी लुकअप। एच लुकअप इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लुकअप्स। ओके, तो एच लुकअप है, राइट। बट अगेन प्रॉब्लम वही है, लेफ्ट टू राइट वाला, और कई सारी दिक्कतें रहती हैं, राइट। और हमेशा पहला कैरेक्टर निकलता है। सो इट वॉज ए कॉन्स्टेंट चैलेंज। उसको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, राइट। हमने क्या जुगाड़ लगाया, इसको कॉपी पेस्ट इधर कर दो जी, और फिर ढूंढ लो, लेफ्ट टू राइट कर लो काम, राइट। सो लॉट ऑफ जुगाड़ वगैरह लगाने पड़ते हैं, तभी हम काम कर पाते हैं। बट एट द सेम टाइम आप सोचिए ना कि एक्सेल ऑल्सो इज ट्राइंग टू गिव यू गुड एक्सपीरियंस, उसके लिए भी कस्टमर इंपॉर्टेंट है, कस्टमर का जरूरत उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अभी एक्सेल नया फंक्शन लेके आया है विच इज अवेलेबल इन 2019 एज वेल एज 365, विच इज नाउ कॉल्ड एक्स लुकअप। नाउ एक्स लुकअप इज लुकअप एनीवेयर। अभी आपको ना वी लुकअप का जरूरत है, ना आपके पास कुछ जरूरत है एच लुकअप का, क्योंकि एक्स लुकअप कुड बी लाइक लुकअप एनीवेयर। अभी उसको आप चाहे कॉलम से ढूंढ लो, चाहे रोज में ढूंढ लो, कहीं ढूंढ लो, अभी वो इश्यू नहीं है। उसी तरह से चाहे दाएं ढूंढ लो चाहे बाएं ढूंढ लो, वो कोई इश्यू नहीं है। ऊपर ढूंढ लो नीचे ढूंढ लो, मीन्स एक्स एनीवेयर, राइट। So because this great function, which is Pankaj is not getting in XLOOKUP. See, XLOOKUp is there in 365. Pankaj, you'll have to check perhaps 2019 के update में ये उसके insider version में कहीं ना कहीं होना चाहिए, because the latest function which has been introduced now is XLOOKUP. Okay. Now when I talk of XLOOKUP, अभी XLOOKUP भी वही बात करता है, सबसे पहले बात करता है lookup value। तो लुकअप वैल्यू हमारे पास वही आ गया, मार्स एंड प्लूटो। ओके, अब उसमें क्या वो बोलता था, रेंज। अभी वो एरे की बात करता था, रेंज की। अभी ये बात करता है लुकअप एरे की। ओके, वो टेबल एरे की बात करता है, मतलब पूरे टेबल की बात कर रहा था। ये बोलता है ठीक है, ढूंढना कहाँ पे है वो बताओ मेरे को। तो इसमें आप, मैं एक सिंगल कॉलम ले लूंगा अभी, मेरे को ढूंढना कहाँ है, मेरे को ढूंढना इसमें। Okay, because I want to copy this formula, I'll put a freeze. Okay, F4 so we can put in dollar sign. Dollar sign means we have made it absolute. Okay, अब वो बोलता है रिटर्न एरे ना, बिकॉज उसमें बात क्या करता है, टेबल एरे मीन्स वो एंटायर टेबल सिलेक्ट करता है, बट इसमें वो एक एक कॉलम आप दे सकते हो उसको। अब बिकॉज अब रिटर्न एरे की बात कर रहा है, तो इसीलिए मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा ना मैं राइट में हूँ या लेफ्ट में हूँ, मेरे को एक एरे ही देना है ना। So this time what I'll give it is, I'll give it this one. So अगर मैंने इधर नहीं भी कॉपी किया, so I can take it from the right, from the left, not an issue. Okay. Again what I'll do is freeze it. Now इसका ब्यूटी देखिए, इन्होंने इसी के अंदर ही डाल दिया if not found. जनरली वी लुकअप में क्या होता था कि अभी अब हमने भी देखा था, हमारे पास NA प्रॉब्लम आया था, अगर नहीं मिलता तो वो क्या देता है, तो अनसाइटली एरर कोड देता है NA, जो कि बहुत भद्दे से लगते हैं when you are in a data. Okay, so they look very bad, whenever there are those NAs, those errors, they are very unsightly. उसको खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते थे, हम यूज करते थे समथिंग लाइक इफ एरर। ओके, कुछ लोगों को ध्यान हो, उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इफ एरर देते हैं। इफ एरर देन रिप्लेस दिस विद सम काइंड ऑफ ए ब्लैंक, या जो कुछ भी अपना लिखना चाहते हैं, या जीरो या व्हाटएवर जो भी हम चाहते हैं, हम उसको इफ एरर वाला फंक्शन दे देते थे। बट उसका भी इसमें जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि इन्होंने ये फॉर्मूला में बिल्ड कर दिया एक्स लुकअप के अंदर कि इफ नॉट फाउंड मींस इफ इट इज नॉट फाउंड व्हाट इज द रिजल्ट यू वांट। ओके, सो आई कुड जस्ट पुट इन 2 डबल कोट्स, मींस अगर कुछ नहीं है तो खाली छोड़ दे यार, ब्लैंक दे दे, डोंट राइट NA। ओके, अभी आता है मैच मोड ना। मैच मोड के अंदर इसके कई सारे मैच मोड्स हैं,
let me see. ओके, नाउ मैच मोड में जब हम आते हैं तो मैच मोड में कॉमा इसमें से ओके, सो मैच मोड में देयर कुड बी 0 मींस एग्जैक्ट, 1 -1, इसमें मोर देन लेस देन वाले भी कई सारे फंक्शंस हैं. ओके, so what I say is now exact match. I want an exact match. So 0 is an exact match. इसमें exact match और next smaller item, exact match और next larger item. उसमें क्या होता है approximate match. तो इसके अंदर many different options have been given. Okay, इसमें wild card भी हम कर सकते हैं. Okay, so right now not getting much into the complications. So what I say is okay, and I click on okay, and I get the GSTN. Okay, so मेरे पास ये आ गया. Just double click, I get all of them. So the point I wish to make is कि VLOOKUP के जो भी shortfalls थी, जो भी challenges थे VLOOKUP के, they have been overcome with XLOOKUP. So XLOOKUP is the latest function which has come in the Excel 365 and the latest versions of Excel, which is much improvement over all the challenges you face whenever you used VLOOKUP. So it is much more dynamic. आप इधर उधर किधर से भी select कर लो. आपने array डाला, आप array में rows डाल दो तो आपको it works like HLOOKUP. So कुछ तरह काम कर सकता है, right? तो लाइक VLOOKUP में क्या होता है कि आपको व्हेन यू आर सर्चिंग तो सबसे पहला वाला ले लेता है. लाइक वन आइटम इज रिपीटेड मोर देन वंस, तो सबसे पहला वाला रिजल्ट ले लेता है. विद दिस आप चाहिए तो लास्ट वाला भी ले लेगा. सो प्लेंटी ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर इन XLOOKUP. ओके, सो जस्ट वांटेड यू टू इंट्रोड्यूस यू टू XLOOKUP, व्हिच इज अ रियली ब्यूटीफुल फंक्शन वी हैव. ओके, नाउ हमारा इशू क्या हो रहा था, समथिंग विच वांटेड टू चेक वाज कि ऐसा तो कोई केस नहीं है जिसके अंदर की गलती से CGST की जगह IGST डल गया. ये IGST की जगह गलती से CGST चार्ज कर दिया. ओके, सो माय क्वेश्चन इज कि हाउ कैन यू चेक इट? एनीबॉडी इन द चैट से यू वांट टू चेक कि ठीक से चार्ज किया हुआ है, कैसे कर सकता हूँ? interstate code from left function, perfect. Okay, so अभी मेरे को क्या चाहिए, इसमें से state code चाहिए. Okay, so I'll take a state. Okay, so state को अपने या तो function left से ले सकते हैं. Okay, left से क्या होगा कि with a comma 2 means 2 leftmost characters, one option. Okay, मैं इसमें देता हूँ तो मेरे पास सबका left function आ गया, right? And I can see the various state codes. So I'm in UP 09, ये भी 09 में है, तो fine, works. Okay. Yeah, अभी हमने एक नया function सीखा था which was called flash fill. Okay. So I say okay, flash fill, मैंने 09 लगाया और मैंने सिर्फ कंट्रोल ही दबाया, उसने बोला ठीक है सर, replicate the logic. That is the power of flash fill, the magical flash fill we call it, right? So one click and our job is done. And flash fill हमने बात किया था, it is within the data tab here. Okay, so both ways you can do it, any way you can do it. Okay, तो अभी तक हमने क्या देखा, we have converted the data, we have cleaned the data, right? So once we have cleaned the data, okay, so अभी दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं हम, अब इस डेटा को, क्योंकि हमारे पास एक ढंग का डेटाबेस बन गया, we can sort it out, we can use filters, we can use all those functions again to do the things. Okay, so what I'll do is I'll just make this a bit bold, क्योंकि जब हम डेटाबेसेस की बात करते हैं, लिस्ट की बात करते हैं, कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, मेक योर जॉब इजियर. ओके, हेडर रो रखिए, एंड हेडर रो को हमेशा यू कीप इट एज बोल्ड, क्योंकि बोल्ड से क्या होता है कि एक्सेल को समझ में आता है कि दिस इज द हेडर. अपने डेटा में कहीं भी ब्लैंक रो मत रखिए, कहीं भी ब्लैंक कॉलम मत रखिए, बिकॉज ब्लैंक रोज एंड कॉलम्स एक्सेल के लिए क्या होते हैं, दीज आर द एंड ऑफ द एरे मार्कर्स. ओके, एंड हेडर कहीं भी मर्ज नहीं होना चाहिए, दो कॉलम दो रोज में नहीं होना चाहिए. सो ऑल दीज आर प्रिकॉशंस यू टेक एंड योर जॉब वुड बी इजियर व्हेनेवर यू आर टॉकिंग ऑफ लिस्ट और डेटाबेसेस. ना अभी इसमें देखिए, मेरा ये डेटा प्रॉपरली फॉर्मेटेड है, मैं डेटा में गया और डेटा में मैंने सिर्फ सॉर्ट पे गया. आप देख रहे हैं पूरा को पूरा डेटा उसने आराम से सॉर्ट कर सिलेक्ट कर लिया.
विदाउट सिलेक्टिंग द डेटा, बिना सिलेक्शन के उसने कर लिया। और इधर देखें, इधर वो बोल रहा है माई डेटा इज हेडर्स, तो मीन्स उसने हेडर्स भी डिटेक्ट कर लिए। और अब सॉर्टिंग जो होगी दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू हेडर्स, अभी वो पूरी सॉर्टिंग जो हो रही है दैट इज अकॉर्डिंग टू हेडर्स, नॉट सम काइंड ऑफ कॉलम ए, कॉलम ए आई वाई, फिर ढूंढते रहोगे कॉलम ए आई वाई में क्या था, या कॉलम ए एक्स में क्या था। तो नो सच थिंग्स, राइट। while I'm on sort, okay, मैं sorting में हूँ, तो there are a couple of things which become important, okay। सॉर्टिंग में एक तो ये बहुत अच्छा फंक्शन होता है, आई डोंट नो किसी ने यूज किया नहीं किया, दिस इज कॉल्ड ए क्विक सॉर्ट, ओके। तो आप जिस कॉलम में भी हैं, कभी आपको क्विक सॉर्टिंग करना हो, जस्ट वन क्लिक सॉर्टेड, ओके। तो उस कॉलम के हिसाब से इमीडिएट सॉर्टिंग हो जाता है, ओके। नाउ लेट्स से अभी हम एज ए चार्ट अकाउंटेंट आई एम सेइंग कि मैं देख रहा हूँ यार ये बहुत बड़ा सा आइटम है, इसको बाद में मेरे को ढंग से सारा कुछ चेक करना है। सो व्हाट आई कुड डू इज आई जस्ट पुट इट इन अ डिफरेंट कलर, ओके। ये भी आइटम काफ़ी बड़ा है, सो आई वांट टू लेटर ऑन रिव्यू दीज बिल्स, आई वांट टू सी द होल परचेज ऑर्डर्स, इसका सारा कुछ मैं सॉरी सेल्स ऑर्डर वगैरह सब कुछ चेक करना चाहता हूँ, ओके। सो अभी अगर देखेंगे तो डेटा में जब हम सॉर्टिंग में जाते हैं तो सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू वैल्यू तो होती है, बट अगर इसमें देखेंगे ना तो अकॉर्डिंग टू फॉन्ट कलर भी यू कैन डू इट, ओके। So it's not only according to values, you can also sort it according to the color also. तो sorting के बहुत सारे तरीके हैं, lot of sorting is wonderful, whenever you want to sort according to values, आप अपना लिस्ट के हिसाब से भी sort कर सकते हैं। So plenty of different options are there whenever you are talking about sorting. Okay, now while I'm on it, Ravish ji, one thing I want to know is हमारे पास time कितना है, right? How much time do I have? Sir, we are going to have your session till 4. We have 45 minutes. We have 45 minutes approx. We have, sir. That's great. That's great. Because at one of the places I said कि how much time do I have? They said sir आप जब तक बोलिए, जब तक आपकी इच्छा है, हम 45 मिनट बाद उठ के चले जाएंगे। So I thought it's better, I just get to know what is the time so that I could contain it within that time. Okay, so that is great. So now the next thing we'd like to look at is filter, So I can filter this data also. Now filter, friends, let me tell you, is a beautiful function, as I said, evolved with every version of Excel. और filter वो पुराना वाला filter नहीं है, इसमें बहुत सारे नए options आ चुके हैं. So if you are using something like 2007 or something, तो अभी आप देखेंगे इसमें बहुत कुछ नया आ चुका है. Okay, one is डेट के अंदर देखें ये सारे फिल्टर्स तो है ही, बट अगेन यू गॉट मेनी डायनामिक फिल्टर्स आल्सो, दिस वीक, लास्ट वीक, दिस क्वार्टर, प्रीवियस क्वार्टर. सो ऑल दीज डिफरेंट यू कैन फिल्टर अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया डायरेक्टली. आपको एक साल का चाहिए, एक हफ्ते का चाहिए, एक महीने का चाहिए, सो यू कैन डू इट वेरी इजीली. ओके, देन अगर आप न्यूमेरिक फिल्टर में देखें, दे हैव गॉन बियॉन्ड व्हाट वी कुड थिंक ऑफ. सो ये रूटीन फिल्टर्स तो हम सभी यूज करते हैं, बट अभी देखिए ना, नंबर्स में आपके पास आ गया टॉप 10. अभी आपको चाहिए कि विच आर माई टॉप 10 सेल्स, क्योंकि उसको आप बाद में रिव्यू करना चाहते हैं, आप उसको देखना चाहते हैं, उसका पूरा सेल्स प्रोसेस आप उसको स्टडी करना चाहते हैं, राइट. सो यू जस्ट क्लिक ऑन टॉप 10 एंड व्हाई टॉप 10? ओके, यू कुड हैव टॉप 5 ऑल्सो, यू कुड हैव टॉप 15 ऑल्सो, and you could even have bottom also. So top bottom makes the things very very easy. So ऑडिट में क्या होता है कि जनरली जैसे आई टेक ए क्रूड एग्जांपल, मान लिया बैंक में ही जाते हैं और बैंक में उसको बोलते हैं कि यार तेरे टॉप 10 बोरोवर्स कौन से हैं. सो यू डोंट नीड टू आस्क, यू गॉट ए लोन फाइल, जस्ट गो टू टॉप 10, इधर से निकल के आ जाएगा. या यू वांट टू नो द टॉप 10 डिपॉजिटर्स, या आपके क्लाइंट में आप चाहते हैं टॉप 10 डेटर्स और टॉप 10 क्रेडिटर्स, यू कैन डू इट वेरी इजीली विद फिल्टर्स. ओके, so filter is great for these kind of things. Not only that, अब इसमें देखें तो आपके पास above average भी आ गया. Okay, then above average भी आ गया, below average भी आ गया, right. So plenty of these options are there. You want to know the above average expenses, वो travel expense which are above average, okay, या वो electricity consumption across months, across units, whichever is above average. So you want to review those things. So with one single click, you could get those entries. Okay, so above average, below average, so all these options are there. Okay. Now,
Filter में, as I said, there are plenty of things which are unexplored. Okay, so unexplored in the sense कि वो बहुत जमाने से है, but probably we somehow miss it. Okay, let me take a very simple example so that you'll get an idea of how to do those things. So इसमें से आपको IGST वाला सिर्फ जो है आपको डेटा किसी को भेजना है, let's say just to cross check, or you want to give it to a different team for checking कि IGST properly लगा या नहीं लगा. Now IGST कौन से होंगे जिनका 7 है. ओके, अभी इसमें आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि गलती से कुछ लग गया हो, राइट? सो IGST की जगह CGST या CGST की जगह IGST. सो अगेन फिल्टर कुड बी ऑफ हेल्प टू यू. हम फिल्टर पे आए. ओके, सो आई वांट टू चेक ओनली फॉर 9 बिकॉज 9 इज माय स्टेट एंड 9 इज द सारी ट्रांजैक्शंस आर इंट्रास्टेट. सो इंट्रास्टेट में अपने पास क्या होना चाहिए? ओनली CGST एंड IGST, सॉरी CGST एंड SGST. बट इधर हम देख रहे हैं हमारे पास एक ट्रांजैक्शन IGST की भी आ रही है. Further, I go to filter. So what I find is now there are 2 transactions which are of IGST, which should have been CGST. Okay, because this is within the state sales. So point is, filter is a great tool. फटाफट आपको आपके हिसाब का डेटा मिल जाता है. You could set up a criteria. You could find out things very easily. Okay. So just clearing the thing. अभी क्या है कि I want to also see कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जहाँ IGST लगना है उसकी जगह CGST लग गया हो. So just come to this, okay, and I'll come to CGST, and here what I find is there is a CGST. अभी कायदे में 7 है, it should be interested, it should have IGST, but वो गलती से क्या हुआ? CGST लग गया. Okay. So Manoj is here. I really welcome him. And Ravish, do you want me to stop and should he there or what? सर सही आप जो बोले सर. नहीं it's नहीं रवीश जी, मेहता जी, please continue. Complete your. I'm not speaking between. Sorry, I'll only speak once your session is over. So sir, after 45 minutes, Manu sir. I'm waiting. I'm also taking the advantage of Mehta ji's deliberation. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Sure. Okay, so we could just unfilter it, right? So we clear up the filters. So what I told you is that filter हम underutilize करते हैं, but filter is a very very powerful tool. So not only that, अभी अगर आपने देखा हो कि हमारे पास दो कंपनीज हैं. वन इज दिस Sunway. I'll just copy it here. Okay. And दूसरा मेरे पास है Neptune. Okay. Neptune is also interstate. Okay. Let me see some entry relating to Neptune. So we got this Neptune. So Neptune is again intrastate. Okay. And as I said, हमारे को एक लिस्ट चाहिए जिसमें सिर्फ इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस हो. आई वांट ऑल दोस इनवॉइसेस व्हिच आर इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस. और हमारे साथ क्या होता है, हम इधर फिल्टर लगाते हैं, वो फिल्टर फिर किसी को शीट भेज देते हैं, वो गलती से उसको क्लियर फिल्टर कर देता है, फिर उसके पास सारी शीट आ जाती है. ओके. एंड अगर प्रीवियसली का भी सोचे तो उसके पास सारा का सारा डेटा चला गया, राइट? सो देयर इज अ ग्रेट ऑप्शन. मेरे को सिर्फ एक लिस्ट चाहिए जिसमें सनवे की एंट्रीज है, नेपच्यून प्राइवेट लिमिटेड की एंट्रीज है. कोई मुझे बता सकता है चैट में व्हाट इज द ऑप्शन यू कैन यूज फॉर दिस? Anybody in the chat, what is the option you can use? I want only entries relating to Sunway and Neptune. Conditional formatting, okay. One way, yes. If, pivot. Okay, great. अगर मैं बोलूँ एक छोटी सी ऑप्शन है, बहुत छोटी सी ऑप्शन है. ओके, वेल निखिल गॉट इट. ओके, निखिल गॉट इट. एक बहुत छोटी सी ऑप्शन है जिसको हमने शायद कभी देखा ही नहीं होगा, राइट?
which is this small thing called advanced. छोटी सी लगी होती है, you know, filter, बड़ा सा filter से छोटी सी option, okay, which probably we have never gone to explore. Okay, so friends, one thing I'll say is कि वो जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, they could be like wonderful things, could make your life much easier. Okay, let's see how this advanced filter works. Okay, so I'm here and I just click up advanced filter. अब एडवांस फिल्टर ने क्या किया, वो सारा डेटा ले लिया जो मैं चाह रहा था, मेरा पूरा का पूरा फिल्टर का डेटा ले लिया. अब इसके नीचे देखें तो दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग व्हिच सेज क्राइटेरिया क्या चाह रहे हो. सो क्राइटेरिया में मैं चाह रहा हूँ कि वेयर एवर कस्टमर इज सनवे एज वेल एज नेपच्यून, मैं बोलता हूँ इस क्राइटेरिया को, तो दैट क्राइटेरिया कुड बी एनीथिंग, जो भी आप डिसाइड करें. आप इसमें ये भी कह सकते हैं वेयर एवर अमाउंट इज मोर देन 5,000 या अमाउंट इज मोर देन 1 लाख, तो योर चॉइस एंटायरली. इसका जो ब्यूटी है ना, वो देखिए, ये बोलता है कॉपी टू अनदर लोकेशन. दिस वी हैव नेवर एक्सप्लोर्ड. ओके, इट सेज कॉपी टू अनदर लोकेशन एंड मैं इसको बोलता हूँ कि ठीक है, यू कॉपी टू अनदर लोकेशन एंड मैं इसको ये वाला जगह दे देता हूँ. मैं बोलता हूँ कि यहीं पर इसकी अलग से कॉपी बना दे. सो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस पूरे डेटा को लो, इसको फिल्टर करो फॉर सनवे नेपच्यून एंड इस पूरे डेटा को दूसरी जगह जस्ट कॉपी इट देयर. ओके, and click, bingo. So what you got is only entries relating to these two which have been copied to a separate location, though this copy to could be a different sheet altogether also. So wherever you want to send the sheet, अभी उसमें कोई वो झंझट नहीं है कि वो फिल्टर हमने लगा के भेजा है, उसने अनफिल्टर कर दिया, बाकी का डेटा भी उसके पास जा रहा है, कुछ झंझट नहीं है. अदरवाइज हम क्या करते हैं, उसमें फिल्टर लगाते हैं, विजिबल सेल लेते हैं, उसको कॉपी पेस्ट स्पेशल कहीं और करते हैं. सो कुछ झंझट नहीं है, जस्ट वन वेरी सिंपल फंक्शन विच इज एडवांस फिल्टर. ये छोटा सा साइड पे छुपा हुआ है फिल्टर के नीचे. एक जमाने में बड़ा सा फिल्टर होता था एडवांस फिल्टर, बट समहाउ माइक्रोसॉफ्ट ने फिल्टर बड़ा कर दिया, एडवांस फिल्टर को बहुत छोटा सा फंक्शन कर दिया. किसी ने अगर पुराना कभी एक्सेल यूज किया तो एडवांस फिल्टर यूज टू बी अ प्रीटी बिग फंक्शन आउट देयर. बड़ा सा आइकन होता था इसका. So friends, we had a look at how we can clean data using flash fill, using left function, we can sort the data, we can filter the data. और हमने देख लिया sorting हमारे पास function भी है अभी, right? हमने देखा VLOOKUP कैसे यूज कर सकते हैं, trim कैसे कर सकते हैं. And these two latest functions which have come in Excel 365, one is XLOOKUP, other is unique function. Okay. So after you have cleaned the data, okay, the next point is you will be analyzing the data for some kind of an audit objectives. Okay, अभी आपके पास data clean हो गया, कुछ objective तो आपके इधर से ही पूरे हो गए, right? Finding some kind of outliers, finding top transactions, finding above average transactions, जो आप filter से use कर सकते हैं. Okay, कुछ चीजें आपने cross validate करनी थी, हाँ नाम मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो भी मिल गया अपने को ढूंढना था, कोई CGST की जगह IGST तो नहीं लग गया, वो भी हमने using filters हमने ढूंढ लिया. So a lot of analysis we have already done using those functions. Okay, so now I come to further analysis using functions. We'll be looking at how we can use tables. Okay, tables, friends, is a great tool. Let me tell you, it's a great function within Excel. And Excel ने पीछे Microsoft ने एक survey किया था where it found कि hardly 1% of the total Excel users use tables, although it's a beautiful function which is there in Excel. Then we'll be looking at that one, Brahmastra, which we have pivot tables. Okay, and we'll also look at slicers, because these two tools are great. Okay, whenever you're talking of Excel. Okay. So now I'm on the data. मैंने इस data का create कर लिया. Let me clear out these things so that they don't interfere with this. I'll just delete the thing. Now, first feature I'll talk of is tables. As I said, see, देखो एक simple सा एक problem समझो कभी, and I think so सबने face किया होगा. जैसे ही हम इस डेटा को करते हैं, अभी थोड़ी देर बाद हमारे को ये नहीं पता ये डेट है क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या अमाउंट है, ये कौन सा अमाउंट है, ये कौन सा अमाउंट है, क्यों क्या हुआ, हेडर्स गायब हो गए, राइट? अपने फ्रीज पेन्स यूज कर सकते हैं, उसको फ्रीज कर दिया, यस कैन बी डन. पर दोस्तों मैंने बोला ना कि बहुत बढ़िया फीचर एक्सेल लाया हुआ है, very few people use it.
okay, which is there within insert. This is called tables. So in table से insert कर सकते हैं या control T. It's an easy shortcut for that. So जैसे ही मैं इसको control T करता हूँ, बोलता है these are tables. Okay, should I convert it to table? So I say okay. Now they are converted to tables. Okay. And मैं इस टेबल का नाम भी दे सकता हूँ. मैंने इसको नाम दे दिया sales. Okay. Now अभी अब देखिए, जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करना शुरू करता हूँ, आर यू सीइंग इट? अभी हेडर्स कॉलम ABCD खत्म हो गया. तो आपका एक प्रॉब्लम पहला खत्म हो गया. आप कहीं भी जाइए टेबल में, यू विल ऑलवेज फाइंड हेडर्स. आप कहीं भी स्क्रॉल करिए, इट कुड बी 1 लाख आइटम्स. तो आप 1 लाख नीचे पहुंचेंगे तो भी आपको हेडर की जगह आपको पता रहेगा वाटर इस कॉलम का मतलब क्या है. दैट्स वन ब्यूटी विच वी हैव विद इन टेबल्स. ओके. इसका दूसरा रहता है, जैसे ही आप टेबल में आते हैं ना, ये ऊपर आपके पास टेबल डिजाइन आ गया. अब टेबल डिजाइन में दूसरा इसका जो ब्यूटी है, दैट इज, अगर आप देखें तो अभी इसके बैंडिंग हो गया, तो पढ़ना आसान होता है. सो दैट बिकम्स इजी, रीडेबिलिटी बिकम्स गुड. एंड तीसरा क्या है इसके अंदर, जैसे ही मैं टोटल रो क्लिक करता हूँ, अभी आप देखिए नीचे मेरा टोटल ऑटोमेटिकली बन के आ गया. मुझे अमाउंट का टोटल चाहिए तो इसके भी मेरे को वो ऑल्ट डाउन कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, एवरीथिंग इज इन बिल्ट. सो हेयर आई हैव गॉट सम आल्सो. ओके. एंड मेरे को ऐसी तरह SGST का चाहिए, मेरे को जिस कॉलम का चाहिए मैं सम लगा सकता हूँ, टोटल लगा सकता हूँ, हटा सकता हूँ. मेरे को ख़त्म करना है, 1 क्लिक गॉन. मेरे को एडिशनल आइटम ऐड करनी है, तो मेरे लिए काम बहुत आसान है. सो दिस वर्क्स वेरी डायनेमिकली. ओके. जैसे ही मैंने किया, देखिए एक रो और ऐड हो गया. सो रो एडिशन, कॉलम एडिशन सब बहुत आसान है व्हेन यू टॉक ऑफ टेबल्स. And table works great, especially when you're talking of pivot tables. जब हम pivot tables में जाते हैं तो फिर काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जितना भी डेटा हमारा ऐड होना होता है वो बहुत इजीली आता है. रीजन इज कि टेबल्स डायनेमिकली एक्सपांड होते जाते हैं, राइट? सो आफ्टर डिस्कसिंग अ बिट अबाउट टेबल्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ टेबल्स, ओके, सो नाउ लेट मी गो टू वन स्टार फंक्शन ऑफ Excel, which is called pivot tables. Pivot table is a great tool, let me tell you. Pivot table is one of the very powerful tools. And इतना पावरफुल है कि एक्सेल ने जब उसकी पावर को देखा तो फिर एक्सेल ने क्या किया, 2010 में वो ले आया पावर पिवट्स. 2013 में ले आया वो पावर क्वेरी. जब उसने दोनों टूल्स की पावर देखी तो उसने कहा यार मैं इसे वेस्ट क्यों कर रहा हूँ एक्सेल में. एक्सेल में तो है ही खैर, बट उसने क्या किया, एक नया रेंज लॉन्च कर दिया, विच इज नो पावर BI, पावर बिजनेस इंटेलिजेंस. And power business intelligence is way beyond what you can think of in Excel. Okay. And अगर latest आप Gartner का research देखें तो it says Power BI is today one of the top BI tools which is there. And for those who are interested a bit in technology and interested in data analysis, I'll sure tell you to explore Power BI. That's perhaps a tool of the future. Okay. Now Power BI, as I said, is Power Pivots is pivot on steroids, but उसका base क्या है, pivot ही है. Pivot क्या होता है? Pivot means an axis around which something can spin, something can rotate. So pivot का क्या मतलब होता है, जिसके आसपास कोई चीज घूम सकती है. And here you can spin data. Here you could have multi-dimensional view of data. Okay. Here you can tabulate the data. Here you can cross-tabulate the data using pivots. And pivot का ऑप्शन हमारे पास insert में रहता है. Okay. Now pivot का extreme left, if we go, we see the option of pivots. So once I go to pivot table, okay. So अभी देखिए उसने range भी नहीं लिया, क्योंकि मेरा table नाम sales था, spelling mistake है, but it was basically sales. तो उसने मीन्स मेरा पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया. कहने का मतलब ये है कि अभी अगर मैं नीचे 5-6 रोज और डाल दूंगा तो मेरे को रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं है, मेरे को सोर्स को मेरे को रीडिफाइन करने का जरूरत नहीं है. इट विल वर्क इटसेल्फ. सो आई विल जस्ट गो टू अ न्यू वर्कशीट एंड हियर यू गेट अ न्यू वर्कशीट. नाउ अब अगर देखें तो इधर हमारे पास पिवट आ जाता है. नाउ पिवट हैज गॉट, ऊपर देखें तो हमारे पास पूरा इसका सॉरी सम ऑफ column 1 did miss हो गया.
Okay, so I'll just refresh it. Okay, so अभी इसमें देखेंगे तो मेरे पास पिवट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास प्रॉपर हेडर्स होने चाहिए. So every data should have an header when we are talking about pivots. Okay. ना मेरे को चाहिए मेरा कस्टमर वाइज सेल्स कितना है. तो इधर नीचे देखेंगे ना तो अपने पास रो आ जाते हैं, कॉलम आ जाते हैं, वैल्यूज आ जाते हैं, फिल्टर्स आ जाते हैं. तो काइंड ऑफ है 4 BHK हाउस आ गया. अब आपको किसको किधर बिठाना है आप सोचिए. जैसा आपको पर्सपेक्टिव चाहिए उस तरह का आपको पर्सपेक्टिव मिल जाएगा. ओके, लाइक आप चाहते हैं मेरा कस्टमर वाइज सेल्स, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली कस्टमर को ड्रैग करना है रोज में. कस्टमर्स आ गया और मेरे को सेल्स को ड्रैग करना है या अमाउंट को मेरे को ड्रैग करना है इन वैल्यूज. मेरे पास अमाउंट आ गया. सो वन क्लिक माय जॉब इज डन. वन डायमेंशन ऑफ डेटा. मेरे को चाहिए नहीं यार, मेरे को तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस चाहिए. राइट, लाइक समराइज वैल्यूज बाय काउंट. स्पिन द डेटा. डेटा को स्पिन किया, अभी मेरे पास काउंट आ गया. मेरे को चाहिए किसी भी कस्टमर को मैंने मैक्सिमम सेल्स कितना किया है, मैक्स व्यू. वन मोर स्पिन, मैक्स व्यू. सो पॉइंट इज जस्ट लाइक पिवट. ओके, अगर आपको अपना हल्का सा बायोलॉजी क्लास याद हो तो दिस यूज्ड टू बी पिवट जॉइंट. क्यों पिवट बोलते थे? क्योंकि योर आर्म कुड मूव अराउंड इट. So here also you can move the data, you can spin the data, you can tabulate the data, you can cross tabulate the data, you can do anything with the data, right? So I can go to the summarize values by sum. So मेरे पास sum view वापस आ गया. Means कुछ गड़बड़ फॉर्मूला का गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं है, राइट? सो आप खेलिए डेटा से. I tell you pivot is a beautiful tool with which to play with the data. और आपको ऐसे ऐसे इनसाइट्स निकल के आ सकते हैं आपको सोचा नहीं होगा कभी आपने. ओके, अभी मेरे को चाहिए कस्टमर वाइज भी चाहिए, मेरे को प्रोडक्ट वाइज भी चाहिए. तो ये लो जी, कस्टमर वाइज भी आ गया, प्रोडक्ट वाइज भी आ गया. अब मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को परसेंटेज व्यू भी चाहिए. तो ओके जी, ये लीजिए, मेरे पास परसेंटेज व्यू आ गया. मेरे को वापस से एब्सोल्यूट व्यू चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है सर. नो कैलकुलेशन, मेरा वापस रुपयों वाला व्यू आ गया. ओके, इस रुपयों को फॉर्मेट करना है वो भी कर सकता हूँ. मीन्स यू कैन प्ले विद द डेटा. यू कुड हैव मेनी डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डेटा. ओके, दैट इज फ्रेंड्स द पावर ऑफ पिवट. मीन्स आप उसके आसपास खेल सकते हैं, आप डेटा को स्पिन कर सकते हैं, उसके अलग अलग डायमेंशंस निकाल सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं डेटा को. और वो जो समझ है दैट इज कॉल्ड इनसाइट्स, राइट? जो आप डेटा के साथ खेलते हैं, उसको समझते हैं, that is called insights, and those insights could help you a lot in your audit, investigation or whatever. And pivot is a great tool for giving you those kind of insights. Okay, now not only that, okay, अभी मैं प्रोडक्ट को फिलहाल हटा देता हूँ. तो I've got just customer and then the values. Now मैं कस्टमर को भी हटा देता हूँ. So I've got just a plain value. और मैं बोलता हूँ मेरे को डेट वाइज पर्सपेक्टिव चाहिए. तो ये लो जी, मेरे पास डेट वाइज पर्सपेक्टिव आ गया. सो आई गॉट ए डेट वाइज मेरा कितना सेल है. बट क्या है कि इतना सारा डेट्स है, बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा. बट कभी आप सोचिए, अगर मेरे को कोई तरीका ऐसा मिल जाए कि मैं इसको मंथ वाइज देख सकूँ, तो शायद मेरे को एक मैक्रो व्यू मिल जाएगा डेटा का. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड आई क्लिक ऑन ग्रुप. एंड इधर देखिए मेरे पास है मंथली व्यू. आई वांट अ मंथली व्यू. आई क्लिक ऑन ओके. तो अभी मेरे पास मंथली व्यू भी आ गया. मंथली व्यू किसका? सेल्स का. मंथली व्यू किसका? सेल्स का. ओके, सो दिस इज द मंथ वाइज सेल्स. अभी मेरे को इसको फॉर्मेट करना है. मैं इसको ढंग से चाहता हूं कि मेरे को एक प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में मिले. और आई जस्ट ओके, नाउ वी आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ओके, मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है. इस डेटा को देख के कुछ नजर आ रहा है क्या आपको? What are the insights you could derive just by looking at this data, by this view of data, I think, so this dimension of data? Anybody in the chat? अगर आपके पास इस तरह का डेटा आता है, क्वार्टरली सेल्स आर हाई,
Spikes in sales. That's great. That's great. Good Vikas. Ganesh, good. Okay. Sales में spikes हैं. और spikes कब है? Quarterly closing spikes. So देखिए ना, आपने whatever वो 1000, 2000 whatever invoices आप उसको देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा. But उसका जैसे आप macro view लेते हैं, you start getting insights out of that. Okay. Not only this. अब अगर मैं चाहूं तो मैं इसके अंदर एक और डायमेंशन ऐड कर सकता हूं. मैं इसमें काउंट भी ले सकता हूं. राइट. मैंने बोला ये सम आ गया एंड ये मेरा काउंट है. ओके. सो नंबर ऑफ इनवॉइसेस उतनी है बट अमाउंट बढ़ रहा है. इसका मतलब क्या, कुछ बड़ी बड़ी इनवॉइसेस भी हो सकती हैं. व्हाटएवर. नाउ फ्रॉम दैट डेटा यू आर गेटिंग इनसाइट्स. ओके. नाउ अभी मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या मैं दिस इज जस्ट वन डायमेंशन. आपको कुछ इंसाइट मिला इसमें से. ओके. सो दिस व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन द डेट्स एंड आई हैव ग्रुप्ड देम. ग्रुपिंग कई तरीके से हो सकती है. ग्रुपिंग कई तरीके से हो सकती है. लेट्स डू वन मोर ग्रुपिंग. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कॉपी दिस पिवट. ओके. और इस पिवट में से मैं क्या करता हूं, you can just drag, you can copy it. Okay. इस पिवट में से मैं डेट निकाल देता हूं. ओके. एंड मैं अमाउंट को भी रो में ले आता हूं. तो मेरे पास रो में अमाउंट है, मेरे पास वैल्यू में भी अमाउंट है. एंड नाउ स्टार्ट्स द मैजिक ऑफ यूजिंग एक्सेल एज एन ऑडिट टूल. ओके दोस्तों, एक्सेल की जो पावर है ना, वो कुछ भी कर सकता है. सिर्फ जो लिमिटेशन है वो हमारे सोचने की भर की है. अगर आप अपना दिमाग खोल देंगे, whatever you can visualize, you can do with Excel. So limitations are only in the mind. Limitations are not with the tool. So सबसे पहले अपने को माइंडसेट बनाना पड़ेगा, अपने को क्या चाहिए, राइट? फिर वो टूल एक्वायर करना पड़ेगा जिससे कि हम काम कर सकें. एंड देन यू नीड टू गेट स्किल्स इन द टूल्स. ओके. अभी आप इसका मैं को छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं. आई जस्ट राइट क्लिक एंड आई गो टू ग्रुप. अभी ग्रुप में देखें तो मेरे पास ग्रुप आ गया. द फर्स्ट फिगर इज 6583. द लास्ट फिगर इज व्हाटएवर, जो भी मैक्सिमम फिगर आ रहा है वही आ रहा है. मैंने इसको 1 कर देता हूं फॉर ए मोमेंट एंड आई क्लिक ऑन ओके. अब आप देख सकते हैं आपके पास क्या व्यू आ गया. अब आपके पास व्यू आ गया कि 1 से लेके 1 लाख रुपए तक का जो ट्रांजैक्शन है उसका टोटल कितना है. ओके. जिस चीज को हम अकाउंटिंग की भाषा में क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन, राइट? द स्टार्ट आई टॉक्ड अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन. फॉर टेस्टिंग योर असर्शंस, स्ट्रैटिफिकेशन कुड बी ऑफ यूज टू यू. ओके. अब 1 सेकंड लगा आपको, यू कैन स्ट्रेटिफाई द डेटा. 1 से लेके 1 लाख तक का कितना इनवॉइस है, 1 लाख 1 से लेके 2 लाख तक का कितना इनवॉइस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके. प्रिया सेज वाओ. प्रिया, अभी पिक्चर, अभी ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर चालू है, राइट? सो अभी लीजिए, आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ इनवॉइसेस आ गया, राइट? अभी आपके पास एक और नंबर ऑफ इनवॉइसेस आ गया. अभी आपके पास एक और नंबर ऑफ इनवॉइसेस आ गया. ना मैं क्या करता हूं, मैं इस कॉलम को राइट क्लिक, समराइज वैल्यूज बाय सम एंड शो परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल. ओके. इसको भी मैं शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल्स. Now my question to all you chartered accountants, okay, अभी आपको कुछ दिख रहा है क्या डेटा में? What is the insight you get out of this? Anybody in the chat? I just
Love to hear your insights. "93% of the invoices are of low value." Great, Ganesh. Wonderful. Any more? Any more insights? Maybe retail seller. Okay, only 6% invoice command 75%. अभी आप सोचिए, आई थिंक सो हर एक ने सुना होगा समथिंग कॉल्ड एज 80-20 रूल और परेटो एनालिसिस. ओके, isn't this what is called परेटो? बट आपको परेटो सीरीज, आपको परेटो निकालना है तो आपको कितना टाइम लगा? ओके, नाउ मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आपको अभी एज एन ऑडिटर अगर आपको कुछ इनवॉइसेस को इन डेप्थ चेकिंग करना है तो मेरा क्वेश्चन है, आप किसको चेक करेंगे? अरे यार, आपको सिर्फ 7% इनवॉइस चेक करके आपका 75%, आपका 73% वैल्यू आप कंफर्म कर पा रहे हो. ओके, हम सब जानते हैं क्या कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी. ठीक है, ऑडिट के अंदर अपने को मटेरियल आइटम्स चेक करना है. Why do you want to go in for 100% checking or something like सारे के सारे मेरे को चेक करने हैं? अभी आपको सैंपल सिलेक्ट करना है. हाउ डू यू डू इट? ओके, देन इजी वे यार, आप सारे इनवॉइसेस को लो, उसका परेटो बनाओ, आपके पास आ गया. अभी आपका जस्ट बाय दिस इज व्हाट एफिशिएंसी इज अबाउट. कंजर्व योर रिसोर्सेज. ओके, कम मेहनत करके बड़ा अचीव करो ना. ओके, सो दैट इज एफिशिएंसी. Okay, just by checking 7% of the items, you are able to achieve, 73%. उसको आपको फर्दर कोई दिक्कत नहीं है ना. अगर आपको आपका मन है नहीं मेरे को 80% ही करना है बस, ओके, तो आप इसको ट्वीक कर लीजिए ना. इसको आप में भी यू कुड डू 60,000. ओके, अभी 60,000 में ये आपका 80 आ गया, ये 20 आ गया, ये आपका 80 हो गया, राइट? ओके, ये आपका आ गया. बट इसमें आपको करना क्या है? आपको सिर्फ 13% इनवॉइसेस को चेक करके आप अपना 80% का टारगेट अचीव कर रहे हो, राइट? सो जस्ट बाय चेकिंग फ्यू इनवॉइसेस, ओके, जस्ट बाय चेकिंग फ्यू इनवॉइसेस, हाउ मेनी, जस्ट बाय चेकिंग 46 invoices, just by checking 46 invoices, you are able to achieve your target, Okay, friends, I said tool है, उसको कैसे यूज करना है, दैट इज आवर विजुअलाइजेशन. हाउ यू कुड यूज इट एज एन ऑडिट टूल. ओके, आई थिंक सो गेट द पॉइंट. पॉइंट इज वी नीड टू प्ले विद द डेटा. हमारे को थोड़ा सा वील हैव टू हार्नेस टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. टेक्नोलॉजी है, टूल वही है, एक्सेल सबके पास है, बीसीओ साल से हम यूज कर रहे हैं. बट पॉइंट इज नाउ वी नीड टू लर्न द स्किल सेट्स, हाउ वी कैन यूज इट टू आवर बेनिफिट. ओके, अभी आपके पास टाइम है, like, so grow with that, use the latest tools and grow with that. Okay, so I think so you get an idea of how you can use something like stratification, again to stratify the data, again to find out some kind of material items, okay, which could help you in testing your assertions. Okay, so just coming back to this sheet. Now one more thing which I want to know is कि ठीक है यार, ये सब कुछ तो है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि यार कौन से कस्टमर वाइज ट्रेंड क्या है. वो ठीक है, मंथ जनवरी फरवरी तो सबने देख लिया कि देयर इज ए स्पाइक इन क्वार्टर एंड, सो मे बी कुछ टारगेट्स का प्रेशर होता होगा, कुछ ऐसा प्रेशर होता होगा जिसकी वजह से कुछ सेल पुश किया, कुछ किया समहाउ, सब कुछ लास्ट डेट्स पे ही होता है दोस्तों. हमारा भी टारगेट लास्ट डेट पे ही जाता है, राइट? 30 सितंबर को जितनी रिटर्न फाइल होती होंगी उतनी शायद ड्यूरिंग द अदर पीरियड नहीं होती होंगी. सो वी ऑल, एवरीबॉडी लव्स लास्ट डेट्स, we are all bound by that. Okay, now we देखें तो एक्सेल में जो दूसरा चीज आया which came I think so in 2010 maybe or maybe 7, I don't recollect exactly, एक बहुत बेहतरीन टूल आया which was called slicers. So this is slicers. So what I want to do is I want to slice this data and I want to slice it for customer.
अब मैं इसका कस्टमर वाइज स्लाइसिंग करना चाहता हूँ ऐसे। ओके, मेरे को कस्टमर वाइज स्लाइसिंग है, तो अभी ये देखिए मेरे पास कस्टमर वाइज स्लाइसिंग आ गया। ओके, अभी ये मेरा कस्टमर वाइज स्लाइसिंग आ गया। मेरे को ये देखना है कि मेरा अर्थ लिमिटेड का क्या ट्रेंड है, मंथ वाइज अर्थ लिमिटेड। इट्स मोर लाइक फिल्टर्स, यू नो। मैंने जैसे ही अर्थ दबाया तो अर्थ को सितंबर में बहुत ज्यादा सेल है, सो यू फाइंड ए काइंड ऑफ ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए ग्राफ, यू नो। अभी यू वांट टू गो टू गैलेक्सी, तो गैलेक्सी का ट्रेंड अगेन, यू नो, मार्च में स्पाइक है, जून में स्पाइक है, सितंबर में स्पाइक है, दिसंबर में स्पाइक है। मींस गैलेक्सी इज बीइंग यूज्ड फॉर दोस मीटिंग दोस टारगेट्स। सो उसको एंड में ज्यादा कुछ पुश किया जा रहा है, राइट। मार्स का देखिए तो कॉन्स्टेंटली अराउंड कॉन्स्टेंट सा उसका सेल है, सो देयर डजंट सीम टू बी मच पुश इन दैट। ओके, सो प्रॉब्ली अगर मेरे को वेरीफाई करना होगा तो मैं देखूंगा कि यार गैलेक्सी में वाकई में सेल है, ये सेल रियलाइज भी हुई है या नहीं हुई। ओके, बट मार्स में ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा सेल है। मिल्की वे में जाता हूँ अगेन, यू नो, उसका जुलाई में है, सो डजंट मच। सितंबर में थोड़ा बहुत है, बट दिसंबर में एक मेजर पुश है। ओके, somebody says iPhone, can you, so my request would be please put your names rather than iPhones, you know. Having iPhone is good, but you know, I don't know who is speaking, so put your names would be better. So I'll just repeat slices, probably this is what you want. Okay, so when you are on pivots, okay, इधर आपके पास pivot table chart आ जाता है, pivot table का ribbon आ जाता है, इधर आपके पास slicer रहता है। So you can slice the data on any criteria. Great, Deepak ji. What I'll say is, so naam daliye, that way I'll also know who is speaking. Right? Okay. Okay. So you know, like इसमें क्या है कि आप कुछ भी स्लाइसर ऐड कर सकते हैं, किसी भी फील्ड के ऊपर आप स्लाइसर्स बना सकते हैं। सो हियर आई एम मेकिंग जस्ट वन फॉर कस्टमर्स, जस्ट टू हैव एन आइडिया। सो स्लाइसर्स क्या करते हैं, डेटा को स्लाइस कर देते हैं, राइट। ठीक है, दे मोर लाइक फिल्टर्स, यू नो। अभी इसमें मैंने अर्थ दबाया तो अर्थ का डेटा फिल्टर्ड है, गैलेक्सी दबाया तो गैलेक्सी का फिल्टर लग गया है, मार्स लगाया तो मार्स का फिल्टर लग गया है, मिल्की वे लगाया तो मिल्की वे का फिल्टर लग गया, मूनलाइट का लगाया तो मूनलाइट का फिल्टर लग गया, राइट। So you know, you find all these kind of filters which are there. So slicers are a great way how to slice your data, how to get insights into the data. Okay, now so friends, well, analysis, I talked about tables, I talked about pivot tables, I talked about slicers, how we can use these features of Excel against to get insights out of the data. So these three tools are a great tools with which you can get insight out of the data. So we've seen how we can, you know, like stratify the data. हमने उसको क्लासीफाई किया, क्लासीफाई कैसे किया, कस्टमर वाइज करके देखा हमने, प्रोडक्ट वाइज क्लासीफाई करके देखा हमने, उसको डेट वाइज क्लासीफाई करके देखा. So all these are what you classify the data to get insights out of the data. Okay, now after analysis comes the presenting the findings. Okay, so you know, after we find out the things, we also need to present it probably in your internal audit reports or in your, you know, your statutory audit or whatever kind of assurance you are doing or whatever job you are doing. You need to, you know, like present the findings. Okay, so for this, you know, a great tool we have is pivot charts. Okay, pivot chart is a wonderful tool with which you can, you know, like do it. क्योंकि they say picture is worth 1,000 words. Picture is worth 1,000 words. Okay, and I just clear out all these filters. Okay, now when I'm pivot, okay, pivot में हमारे पास ऑप्शन रहता है pivot chart का. Pivot chart, you just click on pivot. And then you can, you know, like find a lot of different kind of pivot charts. Okay, you could find clustered column, you could have a line chart, you could have a pie chart, you could have bar chart, and so many of these, right? So let me take a line chart, because when you are talking of trends, you know, line chart makes more sense. Okay, so when you're talking of month-wise sales, then line chart gives you a better overview. Okay, so I'll just click on OK. So ये आप देखिए उसके अंदर मेरे पास pivot chart भी आ गया. So pivot chart is a great way of presenting. Say on आपके जो audit reports है उसमें if you are putting in some kind of charts, so user को एकदम से समझ में आता है what is happening, why are these spikes here. Okay, अभी somebody had looked at it and said there are spikes.
बट अगर उसका ग्राफ बना देता हूँ तो immediately you can see the spikes are there. So visually, you know, the things make more sense. Now this also, you know, works with like slicers. अभी ये मैंने बोला तो मेरे पास सिर्फ अर्थ का वो आ गया. So this works very, you know, like interactively also. So मेरे को मिल्की वे का चाहिए तो kind of a constant thing, but एकदम दिसंबर के अंदर स्पाइक आ गया. Moonlight का again it has got some spikes. Neptune again has got some spikes. Okay. And Mars and Pluto, galaxy. So all these, you know, you could find them useful in looking at, you know, the trends which are there. Okay. So charting is a great way of, you know, like presenting your reports. So as I said, picture is worth 1,000 words. So when you present as charts, so क्या है कि user को भी समझ में आता है better. And it's my feeling, and I think so many of you would agree with me. We chartered accountants are great at analyzing. We are great at finding insights. But when it comes to presenting, you know, I feel we somehow fall short. Okay, MBAs को देखे तो उनका presentation बढ़िया रहता है हमारे से. So मैं जनरली बोलता हूँ कि let's also learn those things, you know. अगर आपका रिपोर्ट कोई जा रहा है सिंपल सा, you know, written report कि there seems to be some spikes here and there, वो लंबी सी कहानी के बजाय अगर आप एक चार्ट डाल दो तो आपकी रिपोर्ट में जान आ जाएगी, right? So Excel is a great tool not only for analyzing, it's a great tool for presenting also, because जब आप charts वगैरह इन सब, you know, dashboards and all में तो आपकी रिपोर्ट that becomes very lively. ओके और जो यूजर है उसको भी बहुत बढ़िया समझ आता है. दैट इज व्हाई यू नो वी गॉट ऑल दिस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन टूल्स और डैशबोर्ड्स व्हिच वी हैव गॉट इन पावर बीआई, टैब्लू एंड ऑल दिस काइंड ऑफ यू नो थिंग्स. So okay friends, that was a bit about our journey from audit objectives to presenting the findings, and just to summarize the whole thing, okay. And you know, we've talked about how we can import data, get it text data into Excel. उसको Excel में कैसे convert कर सकते हैं. We worked with the delimited data. फिर हमने बात किया डेटा को कैसे सफाई कर सकते हैं, कैसे उसको क्लीन कर सकते हैं. And in cleaning we use some functions like flash fill का हमने यूज किया. Flash fill is a magical function which has come in 2013 onwards. And let me tell you, it's a big time saver. Okay. Then friends, we also had a look at how we can use VLOOKUP again to get the items from a different place. उसके बाद हमने trim को use किया डेटा की सफाई के लिए, क्योंकि जहां भी blank spaces है, trim you can use again to clean the data. But VLOOKUP के साथ एक limitation है, it works from left to right. उस limitation को दूर किया XLOOKUP ने, because XLOOKUP could work from left to right or right to left, is anywhere it can go. So that is the beauty of XLOOKUP. Okay, it's a latest tool which has come in, and पहले हम if error use किया करते थे to you know eliminate errors from our VLOOKUP results. वो built in है in XLOOKUP. Then we also talked about you know how to use left function again to get the states out of that. Okay. फिर उस डेटा को ले गए, हमने उसको कुछ sorting किया. हमने देखा sort cell value से कर सकते हैं हम, sorting even color से कर सकते हैं. Okay. And sorting के बाद हमने filter देखा कि filter में बहुत सारे नए features है, तो बहुत सारे dynamic filters है. Okay, a lot of dynamic filters are there which function. Okay, and filter में हमने देखा we could get lot of new features like top 10, bottom 10, top 5, above average, below average. So बहुत सारी चीजें built in है filters में. फिल्टर्स के थ्रू हमने फिल्टर करके ये भी निकाल लिया कि देयर इज ए केस वेयर इट शुड हैव बीन CGST बट वो IGST में डला हुआ है. एंड यू नो वी आल्सो फाउंड आउट कि एक केस वाइसे वर्सा है वेयर इट शुड हैव बीन यू नो IGST हैज बीन पुट इन CGST. सो वी आर आल्सो एबल टू डू दैट थ्रू फिल्टर. फिल्टर से हम एडवांस फिल्टर में चले गए. एडवांस फिल्टर में देखा हमने कैसे वी कैन एक्सट्रैक्ट अ लिस्ट यू नो आउट ऑफ आवर होल डेटा यूजिंग सम क्राइटेरिया. हम अपना लिस्ट निकाल सकते हैं उसमें से. And then you know going further we took the data to tables and we examined tables को कैसे use कर सकते हैं. Okay, and unique कैसे use कर सकते हैं हम.
एंड टेबल्स के अंदर कैसे हम टोटल ला सकते हैं, कैसे बैंडिंग होता है, डेटा एक्सटेंड हो जाता है. देन वी वेंट ऑन टू पिवट्स and we did classify the data, we stratified the data using pivots. Okay, stratification se we also looked at how we can get, do some kind of 80-20 rule laga ke hum sample select kar sakte hain, kuch areas mein in depth ja sakte hain. And classified data se we also looked at trends, and not only trends, we use slices and presented our reports using some kind of charting or visualizations. That is our journey from audit objectives to presenting the findings using Excel. So I believe you must all have learned something out of the whole thing. I'm open to any questions you have. Okay. Sir, Ashok sir has one question. Ashok sir, please. Sir, I have no question for Mehtaji. I just want to thank him for the excellent presentation which he did. And I would request Ravish to get this presentation for articles also. Sure, sir. Noted. That will be very, very useful to them. It was